man to take over the session from here. Thank you. Priyanka ma'am, the floor is yours. Yes, sir. Thank you so much, sir. Myself, Priyanka Gond, and I'm a speech language pathologist. On the behalf of Sanjeevan Physios, I welcome all of you in this webinar session. As people are still joining, let's have a brief introduction about Sanjeevan Physios. So the Sanjeevan Physios runs by a group of visually challenged physiotherapists. I would like to request all of our participants to please keep your mics off. So, it was introduced by Dinas Dalwadawala ma'am in Jan 2013 at Rotary Club, North Bombay. Currently, it has two branches. One is located at Telugu Sudharak Yuvak Sangam, Worli, that is in Worli, and the second one is located in Goregaon East, which is run by Dr. Shraddha Shinde ma'am. So, now it also has started speech language therapy as well as assessment. So people who have speech disorders or language disorders or any kind of voice problem, they are being assessed and treated over there. So if any of you wants to contact Sanjeevan Physios, I'll just share the contact number for you. You can note down 7045 337946. I repeat 7045 337946. Now heading towards today's session. Today we have three experts who will be speaking on this topic, COVID-19, the virus of fear. So before starting this session, I want to tell you all few instructions regarding this webinar session. Firstly, this whole session will be of 1.5 or 2 hours. Once the session reaches to 40 minutes, you have to rejoin the session for the continuation of the presentation. So you have to join, you have to rejoin for 2 times. For rejoining, you have to click over the given link. Secondly, we have a chat box section over there. So you can use this for your any doubts and queries. So if you have any doubts or queries regarding the presentation, you can just drop your queries over there. In the end, when the topic is completed, we will discuss your queries one by one. Lastly, I would request you all to please keep your mics off in order to avoid disturbances. So let's start today's session. Our first expert is Ms. Surbhi Vora ma'am. She is going to present the topic Basic Introduction of COVID-19. She will cover its signs, symptoms as well as its pathology. She will also differentiate between first, second and third wave. She will tell you about what is black fungus and white fungus. So now I'll hand over to Ms. Surbhi ma'am. Yes ma'am. Good evening ma'am. Am I audible? Yes, yes. Okay. Myself Surbhi Vora. I am a BPD final year student. I am studying in Shri Medical Aurobindo Institute, Indore. So मैं आपको आज का टॉपिक जो है वो अब स्टार्ट करती हूँ, जो कि सबसे पहले मैं बताना चाहूंगी कि आप लोग सब सोचेंगे कि ये हमने इसका हेडिंग फियर क्यों रखा। मैंने भी ये सोचा था कि हमें लोगों को डराना नहीं है, क्योंकि फियर से यहाँ पे मतलब है कि आपको उसके प्रिकॉशंस फॉलो करने हैं। ठीक है, तो मैं स्टार्ट करती हूँ आज का। फर्स्ट ऑफ ऑल, रिस्पेक्टेड ऑल ऑफ माय सीनियर्स, माय मैम, सर एंड ऑल डियर फ्रेंड्स। So, आज जो मैं कवर करने वाली हूँ उसमें बेसिक पॉइंट्स है। हम कोविड के बारे में उसकी बेसिक इंट्रोडक्शन, हिस्ट्री, वो कैसे फैलता है, मोड ऑफ स्प्रेड, साइन एंड सिम्टम्स, पैथोलॉजी, फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड वेव के बीच का डिफरेंस, और द मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो आज की तारीख में सब लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है जानना, वो है ब्लैक फंगस एंड व्हाइट फंगस। ओके, तो सबसे पहले ये हमें पता होना चाहिए कि कोविड-19 के आने के पहले कोरोना वायरस के नाम से ये मतलब इंडिया में या पूरे वर्ल्ड में जाना गया था।
The name coronavirus is derived from Latin corona meaning crown. Crown का मतलब होता है कि पावर, ताकत, इतनी, उसको ताज बोल सकते हैं एक तरीके से। ये जो वर्ड है ये फर्स्ट प्रिंट हुआ था 1968 में, जो कि वायरोलॉजिस्ट ने मतलब इसको दिया था, ठीक है, डेजिग्नेट किया था। और ये आइडेंटिफाई आज के लिए नहीं बल्कि 1960 से ही इसकी जो है बेसिक स्टार्टिंग हो गई थी, ठीक है। आज की तारीख में हम इसको कोविड-19 के उससे जानते हैं। तो देखो, कोरोना वायरसेस आर अ ग्रुप ऑफ रिलेटेड आरएनए वायरसेस दैट कॉज डिजीजेस इन मैमल्स एंड बर्ड्स। फर्स्ट ऑफ ऑल तो हमें ये पता होता है कि जब भी कोई वायरस होता है तो वो डीएनए या आरएनए उसके बेसिस पे बॉडी में जाके रेप्लिकेट होता है। तो कोरोना वायरसेस आरएनए के फॉर्म में जो है रेप्लिकेट होते हैं और ये मैमल्स, बर्ड्स में डिजीज फैलाते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग कि रेस्पिरेटरी ट्रैक इन्फेक्शंस कराते हैं जो कि माइल्ड से लीथल हो सकती है। देन माइल्ड इलनेस इन ह्यूमन इंक्लूड सम केसेस ऑफ द कॉमन कोल्ड। अभी हम आगे देखेंगे कि सुनेंगे कि सबसे पहली चीज की हमेशा सीवियर ही नहीं होता कि आप एकदम रेस्पिरेटरी ट्रैक के लास्ट स्टेज पे पहुंच गए, हम बिल्कुल बेसिक से देखेंगे, ठीक है। सो कोविड-19 की आज की जो मतलब आज हम इसको कोविड-19 के से जानते हैं। मोर लीथल वेराइटीज कैन कॉज सार, एमईआरएस एंड कोविड-19। अब आप देखो, सबसे पहली चीज की ये म्यूटेशन, ये जो मतलब जो वायरसेस होते हैं ये अलग अलग स्पीशी के फॉर्म में मतलब फैलते हैं। सार जो होता है वो सब अक्यूट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम करता है, ठीक है। हम आगे जाके और इसके बारे में सुनते हैं डिटेल में। इवन सिर्फ ये ह्यूमंस में नहीं बल्कि साइंटिस्ट के अकॉर्डिंग ये डायरिया जो होता है वो माइस, पिग्स, काउज इनको भी अफेक्ट करते हैं। उनमें भी हेपेटाइटिस और इंसेफेलोमाइलिटिस, ब्रेन का इन्फ्लामेशन, लिवर का इन्फ्लामेशन, मतलब मल्टी ऑर्गन एक तरीके से ये अफेक्ट करते हैं। सो सबसे पहले जैसे कोविड-19 आप लोग सुनते होंगे कि हर जगह हम इसको सार्स, SARS के नाम से मतलब हम सुन रहे हैं इसको आजकल। तो उसका मतलब होता है सीवियर अक्यूट रेस्पिरेटरी is a viral respiratory disease of zoonotic origin caused by severe acute respiratory syndrome। बहुत हल्की आवाज है। ठीक है, उसी तरह से एक तरीके से मिडिल ईस्ट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम होता है, MERS। तो ऐसे इसकी अलग अलग स्पीशीज अलग अलग इन्फेक्शंस कॉज करती है, ठीक है। उसके बाद कोरोना वायरस डिजीज 2019। मतलब चालू तो हो गया पर आवाज। मैम, एम आई ऑडिबल? Yes, yes, ma'am, you are audible. Sir, आप mic Yes, ma'am. Coronavirus ma'am, please disease continue. 2019, also known as the coronavirus or COVID, is a contagious disease caused by the severe acute respiratory syndrome। अब हमने क्या जाना कि जब वो स्टार्टिंग में आया था अराउंड 1960 तो वो जस्ट एक कॉमन कोल्ड करता था, लेकिन आज की तारीख में ये लोगों की जो डेथ का रीजन है वो है सीवियर अक्यूट रेस्पिरेटरी डिसीज सिंड्रोम, जिसको हम जानते हैं सार्स कोविड-2 के नाम से। The first known case was identified in Wuhan, China in December 2019। सबसे पहला केस जो था वो चाइना से आया था इसका। The disease has since spread worldwide और क्योंकि ये पूरे वर्ल्ड में फैल गई है तो हम इसको एज एन पैंडेमिक बोलते हैं। ओके, सो अगर हम कोरोना वायरस के एक बेसिक स्ट्रक्चर की बात करें कि वो कैसा दिखता होगा तो हमें ये इमेजिन करना होगा कि उसके रेड कलर के स्पाइक प्रोटीन्स होते हैं, उसकी ग्रे कलर की एक लिपिड बायलेयर एनवलप होती है जो एक बेसिक आरएनए और इनमें भी हमको स्ट्रक्चर्स में मिलती है, येलो कलर के एनवलप प्रोटीन्स होते हैं और ऑरेंज मेम्ब्रेन प्रोटीन्स होते हैं, ठीक है। तो एक ये हो गया एक इमेजिनेशन। अभी हम आगे देखेंगे कि इसमें कौन से स्ट्रक्चर्स पे पर्टिकुलरली जो होती है एंटीबॉडीज और जो है बॉडी में सेल्स पे अटैक होता है। मैम क्या ये म्यूट करेंगे? या मैम, डिटेल में बता रहे हैं पूरा। सर लक्ष्मण, मिस्टर लक्ष्मण, मिस्टर मनोज एंड मिस मानसी, प्लीज आप लोग अपने माइक्स ऑफ करिए। काफी सारे लोग मुझे दिख रहे हैं जिन्होंने माइक्स ऑफ नहीं किए, प्लीज अपने माइक्स ऑफ करिए ताकि जो प्रेजेंटेशन है वो अच्छे से हो सके। सर प्लीज। There is a request to Surbhi ma'am, please mute all in the participant section.
ओके, सो मोड ऑफ ट्रांसमिशन क्या है? अब ये कोरोना वायरस जो है वो फैलता कैसे है? रेस्पिरेटरी इन्फेक्शंस कैन बी ट्रांसमिटेड थ्रू ड्रॉपलेट्स ऑफ डिफरेंट साइजेस। अब हमको ये पता होना चाहिए कि ड्रॉपलेट्स के फॉर्म में फैलता है। उन पार्टिकल्स का जो साइज होता है वो अराउंड 5 to 10 म्यूएम से भी ज्यादा होता है। इसीलिए मास्क पहनने के लिए बोलते हैं, क्योंकि जो इस साइज है उस पर्टिकुलर जो पार्टिकल होते हैं वो उसके अंदर जाने से रुकता है, ठीक है। एंड व्हेन देयर आर लेस देन 5 दे आर रिफर्ड टू एज ड्रॉपलेट न्यूक्लियाई। ड्रॉपलेट ट्रांसमिशन अकर व्हेन अ पर्सन इज इन क्लोज कांटेक्ट विद इन 1 मीटर। अगर कोई 1 मीटर के भी अंदर अंदर है और ड्रॉपलेट्स इन्फेक्ट हुआ तो एक से दूसरे में वो इजीली फैल जाएगा। विद समवन हु हैज रेस्पिरेटरी सिम्टम्स, अब मे बी वो कफिंग के फॉर्म में जा सकता है, स्नीजिंग के फॉर्म में जा सकता है, एयर, क्योंकि ये एयरबॉर्न होता है तो इसीलिए एयर के फॉर्म में ट्रांसमिट हो जाएगा। एंड इज देयरफॉर एट रिस्क ऑफ हैविंग हिज और हर म्यूकस थ्रू माउथ एंड नोज बाय डायरेक्ट कॉन्टेक्ट। अब हमेशा हम देखते हैं कि जो डिजीज होती है वो डायरेक्टली और इनडायरेक्टली दोनों तरीके से फैल सकती है, तो उसी तरह से कोविड भी डायरेक्ट कॉन्टेक्ट से इन्फेक्टेड पीपल के थ्रू फैल सकता है। और हमने सुना है कि इनडायरेक्टली वो सरफेसेस पे कुछ टाइम तक के लिए रहता है, ठीक है। तो इमीडिएट एनवायरमेंट से, या कोई जैसे कि सपोज कोई डॉक्टर है या कोई भी पेशेंट है, अगर वो स्टेथोस्कोप या कोई भी थर्मोमीटर किसी भी ऑब्जेक्ट के कांटेक्ट में आया है तो उसके थ्रू भी ये फैल सकता है। There is some evidence that COVID-19 infection may lead to intestinal infection and be present in feces. बहुत कम रेशो में या बहुत कम परसेंटेज में ऐसा भी देखा गया है कि कोविड रेस्पिरेटरी के साथ साथ जीआईटी को भी अफेक्ट करता है। However, to date, only one study has cultured the COVID-19 virus from a single stool specimen. And according to research, सिर्फ अभी मतलब इस पे शॉर्टली एक सिंगल स्टूल स्पेसिमेन के थ्रू ये देखा गया। Currently, WHO recommendations emphasize the importance of rational and appropriate use of all PPE, not only masks, which require correct and rigorous behavior from healthcare workers. अब आप जानते हैं कि हम लोग कभी कभी सुनते हैं कि मास्क पहनने के बाद में भी ये डॉक्टर को कोविड हो गया या वो नर्स को कोविड हो गया, बिकॉज कई बार एक छोटा सा मास्क भी उसको बचाने में हेल्पफुल नहीं रहता है। इसलिए WHO के अकॉर्डिंग एटलीस्ट जो मेडिकल जो फैसिलिटर्स है जो प्रोवाइड करते हैं पेशेंट को, तो उनको एटलीस्ट पीपीई किट तो पहनना ही चाहिए। और रिसेंटली और इसकी गाइडलाइंस अभी WHO निकाल रहा है। Finally, WHO continue to emphasize the importance of frequent hand hygiene, environmental cleaning and disinfection, as well as the importance of maintaining physical distances and avoidance of close, unprotected contact with people with fever or respiratory symptoms. Okay, so ये हमने एक बेसिक कवर कर लिया कि कोरोना वायरस का नॉर्मल इंट्रोडक्शन क्या होता है, उसकी हिस्ट्री क्या होती है। अब हम आते हैं साइन एंड सिम्टम्स पे। साइन एंड सिम्टम्स भी अभी क्योंकि ये डिजीज बिल्कुल प्रोग्रेशन में है, तो अभी सिर्फ जो WHO की लेटेस्ट है हम लोग आज उसके बारे में बात करेंगे। बाकी इन फ्यूचर ये और एडअप होता जाएगा जैसे जैसे पेशेंट्स इनको मतलब न्यू न्यू जो चीजें होंगी, सिम्टम्स होंगे, दिखाएंगे। सो अकॉर्डिंग टू WHO, COVID-19 is the disease caused by a new coronavirus called SARS-CoV-2, who first learned of these new virus on 31 December 2019. WHO ने इस पे पहला वर्क 31 दिसंबर 2019 पे किया था, following a report of a cluster of cases of viral pneumonia in Wuhan. हमने ये तो देखा था कि वुहान चाइना से ये आया है, लेकिन पहला केस रेस्पिरेटरी या वायरल न्यूमोनिया का देखा गया था अकॉर्डिंग टू WHO। तो मोस्ट कॉमन सिम्टम्स, सपोज कि हमें अगर ये पता लगाना है कि कोविड-19 में सबसे ज्यादा कॉमन क्या है, तो वो होगा फीवर, ड्राई कफ, फटीग एंड अदर सिम्टम्स दैट आर लॉस कॉमन में अफेक्ट सम पेशेंट आर। हम ये सुनते हैं कि आजकल कुछ पेशेंट ये बहुत कंप्लेन करते हैं कि हमें टेस्ट और स्मेल जो है वो चला गया है, ठीक है ना, किसी जो नोज है वो बिल्कुल एकदम स्टफी टाइप की फील हो रही है, ऐसा लग रहा है कि एयर प्रॉपर अंदर जा नहीं पा रही है, आईज में रेडनेस हो गई है अगर कंजक्टिवाइटिस है, सोर थ्रोट हो चुका है अगर किसी को हेडेक हो रहा है, मसल और जॉइंट पेन हो रहा है, अलग अलग वेराइटी ऑफ स्किन रैशेस अगर मिल रहे हैं, नौशिया, वॉमिटिंग, डायरिया, इवन जो बुखार है वो चिल्स के साथ भी हो सकता है, और डिजीनेस। तो देखा जाए तो हम कोविड को एज एन रेस्पिरेटरी के बजाय हम इसको ये बोले कि ये मल्टी सिस्टम ऑर्गन को अफेक्ट करने वाला है।
Ma'am, am I audible? My voice is clear? Yes, ma'am. Everything is fine. You can continue. Yes, ma'am. Okay. तो ये हमने बेसिक सिम्टम्स देख लिए कि कोविड के क्या क्या होते हैं. ओके इसमें मैं एक चीज इंपॉर्टेंटली ये बताना चाहूंगी कि आज की तारीख में हम सब लोग बहुत डर जाते हैं अगर किसी को बुखार आता है या किसी को सोर थ्रोट हो जाता है एकदम से. तो ऐसा नहीं है. जब तक कि हम इन्वेस्टिगेशन नहीं कर लेते, हम रिपोर्ट से ही निकलवा लेते, हम कंफर्म नहीं होंगे कि वो कोविड ही हो सकता है. क्योंकि आज अभी जो एनवायरमेंट है उसके हिसाब से बैक्टीरियल, फंगल, बहुत सारी चीजें भी उसके साथ में चल रही है. ओके सो सीवियर डिजीज में क्या क्या आपको सिम्टम्स दिखेंगे कि अब तो बिल्कुल इमीडिएटली मेडिकल अटेंशन की ही जरूरत है. शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ, लॉस ऑफ एपेटाइट, अगर कोई कंफ्यूजन स्टेट में है, किसी को बहुत परसिस्टेंट अगर प्रेशर आ रहा है चेस्ट में या पेन हो रहा है, या टेम्परेचर अगर हाई होता है अबव 38. अब यहाँ पे क्या हुआ कि अबव 38 क्यों बोला? क्योंकि कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनको बिल्कुल कोई बीमारी एकदम हाई फीवर से होती है, कुछ को सिर्फ माइल्ड टू मॉडरेट फीवर रहता है. तो उस केस में भी अगर किसी को परसिस्टेंट फीवर आ रहा है तो रिस्क नहीं लेना चाहिए. एटलीस्ट आज की तारीख में तो एक बार डॉक्टर से कंसल्ट कर लेना चाहिए. अदर लेस कॉमन सिम्टम्स आर, अब ब्रेन के भी इसमें सिम्टम्स देखने को मिलते हैं जैसे इरिटेबिलिटी होना, कंफ्यूजन. जैसे जैसे ये सीवियर होता जाएगा तो पेशेंट की कॉन्शियसनेस भी रिड्यूस हो जाती है, सीजर्स तक आ सकते हैं और पेशेंट एंजाइटी, डिप्रेशन में जा सकता है, उसको स्लीप डिसऑर्डर्स होते हैं. एंड मोर सीवियर एंड रेयर न्यूरोलॉजिकल कॉम्प्लिकेशन, और बहुत रेयरली अगर हद से ज्यादा ही सीवियर हो गया है तो फिर वो स्ट्रोक का केस हो सकता है या ब्रेन में इन्फ्लेमेशन हो सकता है. तो अब हम इसको एज एन रेस्पिरेटरी वायरस नहीं बल्कि एक मल्टी सिस्टम वायरस बोल सकते हैं. So people of all ages who experience fever or cough associated, अब ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, people of all ages who experience fever or cough associated with difficulty in breathing and shortness of breath, या चेस्ट में पेन हो रहा है, प्रेशर आ रहा है, स्पीच और मूवमेंट अगर लॉस्ट हो चुका है तो बिल्कुल इमीडिएटली जो है मेडिकल केयर के पास उसको जाना चाहिए. सो नेक्स्ट जो हमारा पॉइंट है आफ्टर साइन एंड सिम्टम्स वो है पैथोजेनेसिस, कि कैसे एक कोरोना वायरस जो है वो आपके सेल्स पे अटैक करता है, किस रूट के थ्रू वो जाता है. सो बेस्ड ऑन द सेल्स दैट आर लाइकली इन्फेक्टेड, COVID-19 कैन बी डिवाइडेड इनटू 3 फेसेस. तो हमने पैथोजेनेसिस को यहाँ पे 3 सिंपल फेसेस में बांट दिया या स्टेजेस बोल सकते हैं. तो फर्स्ट स्टेज होती है बिल्कुल एसिम्प्टोमेटिक स्टेज. अगर लोग इसी स्टेज पर सुधर जाएंगे, इनिशियली फर्स्ट 2 डेज के इन्फेक्शन पे अगर वो प्रिकॉशन ले लेंगे और डॉक्टर के पास चले जाएंगे तो उनको सीवियर सिम्टम्स कभी नहीं आएंगे. अब इसमें क्या क्या होगा कि वायरस इस फर्स्ट स्टेज में क्या करता है, the inhaled virus SARS-CoV-2 likely bind to the epithelial cell in the nasal cavity. इसीलिए मास्क पहनने के लिए बोलते हैं क्योंकि ये बिल्कुल नोज से जाता है आपकी नेजल कैविटी से, जो वहाँ पे एपिथेलियल सेल्स होते हैं ये उनसे बाइंड हो जाता है. और आपने सुना होगा कि स्पेशली जो रिसेप्टर होते हैं ACE2, ये सबसे ज्यादा खतरनाक रिसेप्टर है हमारे बॉडी के अंदर जिससे ये COVID-2 बाइंड होता है. In vitro data with SARS indicate that the ciliated cells are primary cells infected in the conducting airway. अब जैसे जैसे वो एयरवे में अंदर जाता है तो सीलियरी सेल्स जो होती है वो अफेक्ट होती हैं, लोकल वायरस का प्रोपोगेशन होता है. एट दिस स्टेज द वायरस कैन बी, अब इसी स्टेज में जो है ये RT-PCR और ये सब लिए जाते हैं जिससे कि नेजल स्वैब से आप क्या कर सकते हो कि उस वायरस को डिटेक्ट कर सकते हो, या वो इनिशियली जब वो थ्रोट में गया तो आप उसको वहां से डिटेक्ट कर सकते हो. Although the viral burden may be low, these individuals are infectious and RT-PCR value for the viral RNA and throat इस स्टेज में सेंसिटिव होती है. तो ये फर्स्ट स्टेज थी जो बिल्कुल एसिम्प्टोमेटिक या लेस सिम्टम्स के साथ होती है. सेकेंड स्टेज अब थोड़ी जो ज्यादा, अब आप जा रहे हो मॉडरेट से सीवियरिटी की तरफ. अपर एयरवे एंड कंडक्टिंग एयरवे रिस्पॉन्स. ठीक है, अब क्या हुआ कि अब ये नोज से लेके तो अब आपके पहले अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक पे जाएगा, देन फिर लोअर पे. The virus propagate and migrate down to the respiratory tract along the conducting airway and a more robust innate immune response is triggered. ठीक है, तो यहाँ पे भी हम RT-PCR वगैरह से या जो भी इन्वेस्टिगेशन है उससे देख सकते हैं. दूसरी चीज कि पहले वो नोज तक ही था, स्टेज 2 में अब वो आपके अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक तक पहुंच चुका है.
Viral infected epithelial cells are a major source of beta interferons. अब हमको पता है कि बॉडी में कुछ इंफ्लामेटिव जो साइटोकाइंस वगैरह होते हैं, वैसे ही बीटा और लैम्डा इंटरफेरॉन्स को ये अफेक्ट करता है। इसलिए आपने जनरली देखा होगा कि आज की हर तारीख में आपको मेडिकल डॉक्टर एक इन्फ्लामेटरी जो एंटीबायोटिक होती है और साथ में इन्फ्लामेशन को कम करने की जो दवाई होती है वो तो बिल्कुल हर पेशेंट को दे ही रहा है, ठीक है। सो CXCL10 एक इंटरफेरॉन होता है, वो जीन होता है जो रिस्पॉन्सिबल होता है इसके लिए, ठीक है। और मेनली जो एल्वेओलर टाइप 2 होती हैं सेल्स हमारे लंग्स में, ये वायरस सबसे ज्यादा इन सेल्स को अफेक्ट करता है। फॉर अबाउट 80% ऑफ द इन्फेक्टेड पेशेंट, अब देखो 80% जो लोग हैं इन्फेक्टेड, द डिजीज विल बी माइल्ड एंड मोस्टली रेस्ट्रिक्टेड टू द अपर एंड कंडक्टिंग एयरवे। अगर उन्होंने टाइम पे ट्रीटमेंट ले लिया तो ये यहीं पर आकर रुक जाएगा, 80% अपर जो है वहीं पे आकर ये रुक जाएगा। These individual may be monitored at home with conservative, और फिर हम नहीं देखते कि कुछ लोग बिल्कुल होम आइसोलेशन में भी जस्ट नॉर्मल मेडिकेशंस लेके डॉक्टर की प्रिस्क्रिप्शन से वो ठीक हो जाते हैं। सबसे सीवियर स्टेज जो होती है वो आती है लास्ट वाली, थर्ड वाली। अब तो बिल्कुल मतलब सीवियर हो गया है। अब इस स्टेज में जो होता है वो आती है SpO2 की बात। हम सुनते हैं कि SpO2 इतना गिरा, वो 80 चला गया, 70 चला गया, तो वो स्टेज 3 होती है जिसमें हाइपोक्सिया होता है। और जब हम CT स्कैन कराते हैं तो हम देखते हैं कि ग्राउंड ग्लास इनफिल्ट्रेट हमको उसमें मिलते हैं, जो कि अक्यूट रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस सिंड्रोम को प्रोग्रेशन में लेकर जाता है। सबसे ज्यादा ये रेस्पिरेटरी ट्रैक्स को अफेक्ट करके, और जो सेल है एपिथेलियल सेल्स, एल्वेओलर सेल्स, इनकी डेथ हो जाती है, नेक्रोसिस। मतलब अब यहाँ पे क्या हो रहा है कि जो डेथ है वो नेचुरली नहीं हो रही है, ठीक है, इस वजह से पूरे लंग्स जो है वो डैमेज हो जाते हैं। अनफॉर्चुनेटली 20% ऑफ द इन्फेक्टेड पेशेंट विल प्रोग्रेस टू स्टेज 3। लेकिन इन पेशेंट का जो है अमाउंट, बिल्कुल परसेंटेज जो है वो थोड़ा कम है एज कम्पेयर टू अगर वो इनिशियली सुधर जाते हैं तो, मतलब प्रॉपर मेडिकेशंस वगैरह अगर ले लेते हैं, एंड विल डेवलप पल्मोनरी इनफिल्ट्रेट एंड सम ऑफ दीज। लेकिन कुछ अगर इस पे भी कंट्रोल नहीं आते तो फिर वो सीवियर डिजीज की ओर चले जाते हैं, फेटालिटी रेट की तरफ फिर वो जाते हैं। The virus now reaches the gas exchange unit of the lung. सबसे लास्ट में वो एल्वेओलर सेल्स को अफेक्ट करेगा, ठीक है। उसके बाद जो आपकी टर्मिनल बिल्कुल जो पार्ट होता है, एकदम लास्ट वाली जो एल्वेओलाई होती है, जो भी पेरीफेरी होती है लंग्स की, जो भी सब प्लूरल स्पेसेस होती है, अब ये ओवरऑल सबको अफेक्ट कर देगा। एंड रिजल्ट इज लाइकली सेल्फ रेप्लिकेटिंग पल्मोनरी टॉक्सिन। और यही इसकी जो है मेन पैथोजेनेसिस है कि वायरस रेप्लिकेट करता है RNA को और ये डिवाइड होता जाता है और सेल्स को खत्म करते जाता है। The pathological result of SARS and COVID-19 is diffuse alveolar damage with fibrin-rich hyaline membrane and few multinucleated giant cells. ये जितने भी टाइप की जो सेल्स होती है सबको अफेक्ट कर देता है। अब हम ऐसा क्यों बोलते हैं कि एल्डर लोगों को इससे ज्यादा खतरा है? रीजन ये है कि जो हम एडल्ट्स होते हैं या जो भी बच्चे होते हैं, उनकी सेल्स अगर डेथ में जाती है तो उनकी रिकवरी रेट एज कम्पेयर टू एल्डर थोड़ी जल्दी होती है, वो हील हो जाती है आसानी से। लेकिन एल्डर्स में मुश्किल होता है। सो एल्डर आर पर्टिकुलरली एट रिस्क बिकॉज ऑफ डिमिनिश इम्यून रिस्पॉन्स एंड रिड्यूस एबिलिटी टू रिपेयर द डैमेज एपिथेलियम। और इसीलिए उनका म्यूकस जो है, जो भी म्यूकोसिलियरी जो भी उनके क्लियरेंसेस है, कफ है, वो सब भी इजीली एक्सपेल नहीं हो पाते हैं, ठीक है। उसके बाद हियर इज व्हाट द गवर्नमेंट, ओके, तो यहाँ पे हमारा ये पार्ट खत्म होता है पैथोजेनेसिस का। अभी तक हमने एक जस्ट ओवरव्यू ले लिया कि कोरोना वायरस का बेसिक इंट्रोडक्शन क्या होता है, वो कहाँ से आया, उसकी हिस्ट्री क्या थी, कौन कौन से सिम्टम्स पे हमको फोकस करना चाहिए, और हमको ये पैथोजेनेसिस की स्टेजेस बहुत अच्छे से पता होना चाहिए ताकि हम इजीली टाइम पर ट्रीटमेंट ले पाए और हमको एक बेसिक आइडिया हो कि किस स्टेज में हमको CT कराना चाहिए, किसमें नहीं। लास्ट अब जो कुछ जो सब पॉइंट से है वो है वेव्स के बारे में। हम लोग सुनते हैं कि कोरोना की पहली वेव आई, दूसरी वेव आई। क्या होती है ये वेव्स? एग्जैक्टली ये वेव्स हमें ये बताती है, जैसे कि ये राइज होती है या फॉल होती है, जो भी इनकी पीक होती है, कि इन्फेक्शन कितना ज्यादा है, कितना कम है। अकॉर्डिंग टू वर्ल्ड वाइड भी आप इसका ग्राफ बना सकते हो, और या फिर आप किसी सिटी या फिर पर्टिकुलर जो भी नंबर्स है उनके बेसिस पे हम इसको
बना सकते हैं, ठीक है। सो द फर्स्ट वेव हेल्टेड एज अ कॉम्बिनेशन ऑफ अ स्टैंडिंग लेवल ऑफ इम्यूनिटी इन द पॉपुलेशन एंड कॉशरी स्टेप्स। तो सबसे पहली वेव जो आई थी वो एक थमी हुई वेव थी, मतलब ज्यादा ना तो लोगों को खराब करने वाली थी ना कम, एक मतलब एवरेज उसका लेवल था अफेक्ट करने का इम्यूनिटी पे, ठीक है। उसके बाद हमने ये देखा कि ये एल्डर लोगों को ज्यादा अफेक्ट करती थी। रिसर्च के अकॉर्डिंग अभी भी इन सब चीजों पे बिल्कुल जो है चलते जा रहा है कि क्या क्या किस किस को अफेक्ट कर रहा है। तो अभी हम लेटेस्ट जो है वो देखते हैं कि WHO के अकॉर्डिंग क्या है। The second wave started because new opportunities for the spread of the infection come up. When the guard drops, the immunity is sometimes not enough to stop the infection. ये जो दूसरी वेव आई ये थोड़ी सी ज्यादा खतरनाक थी। ये जो इनका डेंजरस फॉर्म होता है ये वायरस पे डिपेंड करता है कि वो कितना हार्म करने वाला है, ठीक है। उसके बाद लोगों की इम्यूनिटी, क्योंकि इम्यूनिटी अगर स्ट्रांग होगी तो वो इससे कम अफेक्ट होंगे। और पहली चीज की ये अभी इतना लेटेस्ट है कि लोगों को टाइम ही नहीं मिलता या पता करने का कि हमें अपनी इम्यूनिटी, क्योंकि इम्यूनिटी सिर्फ एक दिन में नहीं बढ़ती, उसको लोगों को कितने टाइम से उस पर वर्क करना होता है, तब जाके आप किसी भी चीज से फाइट कर सकते हो। ओके, सो मैनी पीपल गेट इन्फेक्टेड अंटिल अ न्यू थ्रेशोल्ड ऑफ इम्यूनिटी इज रिच्ड। कुछ लोग इसमें फाइट कर जाते हैं और कुछ लोग पे ज्यादा सीवियरली रेस्पिरेटरी अफेक्ट कर देता है। सच अ सेकेंड वेव इज टिपिकली, अब इन्होंने जब कंपेयर किया, ठीक है, तो सेकेंड वेव इनको फर्स्ट वेव से छोटी लगती है। सच अ सेकेंड वेव वाज एक्सपेक्टेड, ऐसा इन्होंने एक्सपेक्ट किया था। लेकिन अभी देखा जाए तो सेकंड और थर्ड पे भी बिल्कुल रिसर्चेस चल रही है कि कौन कितने टाइम तक चलेगी, कब जो है ये वेव बिल्कुल डाउनवर्ड जाएगी, कब इन्फेक्शन का रेट कम होगा। However, multiple parameters can change in a small amount and add up to a second wave. क्योंकि ये बायोस्टेट्स अभी कंटिन्यूटी में चल रही है, सारे पैरामीटर्स अभी सब स्टडी के अंडर है, तो इसमें चेंजेस बिल्कुल अभी होते रहते हैं। एक स्टडी में मैंने ये पढ़ा था कि जैसे जो सबसे फर्स्ट वेव आई थी वो एल्डर लोगों को ज्यादा अफेक्ट करती थी। सेकेंड वेव ने आपने देखा होगा कि अभी 40 के अराउंड जो एज ग्रुप के जो लोग होते हैं वो ज्यादा अफेक्ट हो रहे हैं। एंड अकॉर्डिंग टू रिसर्च जो थर्ड आने वाली है वो चिल्ड्रंस को ज्यादा अफेक्ट करेगी, जो कि 18 या 12 इयर्स के एज के होते हैं या उनसे कम होते हैं। तो ये हमको ध्यान रखना है। In early 2021, a very large number of people all over the world have been infected. हमने यही सुना अभी कि 2021 के स्टार्टिंग में सबसे ज्यादा लोग अफेक्ट हुए। एंड जैसे जैसे लोगों की इम्यूनिटी बढ़ती गई तो वायरस को फिर इतना ग्रो करने की अपॉर्चुनिटी नहीं मिली। ये वायरस तभी ग्रो कर पाएगा जब इम्यूनिटी वीक होगी और ये एक से दूसरे लोगों में फैलती जाएगी। बट इट सीज दैट देयर आर पॉकेट्स इट कैन गो थ्रू एंड देयरफॉर evaluation for the viruses to be more efficient in transmission. Okay, so the virus will thus find new routes. तो अभी ये भी क्लियर नहीं है कि एग्जैक्टली किन किन रूट्स, अब जैसे हमने ये तो देखा कि नोज और माउथ से, लेकिन कुछ रिसर्चेस में इवन मैंने ये भी देखा था कि आईज के थ्रू भी इसका कुछ रोल होता है। बाकी वो अभी भी अंडर स्टडी है, तो मुझे एक शॉर्ट इंफॉर्मेशन इसके बारे में थी। देन नेक्स्ट जो आज का सबसे इम्पोर्टेंट और लास्ट जो मैं टॉपिक कवर करने वाली हूँ वो है ब्लैक फंगस और व्हाइट फंगस। मैम, एम आई ऑडिबल? Yes, ma'am. Please continue. यस मैम। ओके, सो सबसे फर्स्ट हम आज जो बात करने वाले हैं वो कोरोना वायरस ब्लैक फंगस इन्फेक्शन के बारे में, ठीक है। सो व्हाट मेक्स द ब्लैक इन्फेक्शन सो डेडली? सबसे पहले black fungus infection has officially been declared on the epidemic in Rajasthan. ये कहाँ से आया? सबसे पहले राजस्थान में इसको देखा गया एंड कुछ दूसरे स्टेट्स में भी नंबर ऑफ इसके केसेस आए। नाउ while fungal infection are not exactly rare or new like COVID, the precedence of cases has gone high in recent time. जैसे जैसे कोविड बढ़ता जा रहा है इन इन्फेक्शंस के केसेस भी उतने ही सामने आ रहे हैं। The infection seems to be the most impactful for those suffering from severe COVID-19 patient. अब मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग कि ये चीजें ज्यादा होने वाली किनको है, तो ये है कोविड-19 के पेशेंट के लिए जो सीवियरली जो इससे हैंडल मतलब ट्रीट करके आते हैं, जिनको जैसे हार्मफुल ये रेमडेसिविर के इंजेक्शंस और ये सब जो लगते हैं। उसके बाद जिनमें ऑक्सीजन सैचुरेशन कम हो जाता है, जिनकी इम्यूनिटी बहुत ज्यादा वीक होती है, तो उन सब केसेस में ये होता है। हु फेसेस द हाईएस्ट रिस्क? सो as per the ICMR guideline,
पेशेंट विथ कोमॉर्बिडिटी, सबसे फर्स्ट जिनको कोई डिजीज वगैरह है या कोई ऐसी मेडिकेशंस ले रहे हैं अगर कोई जो उनकी इम्यूनिटी को सप्रेस करती है कोई एनवायरमेंटल पैथोजेंस की वजह से, ठीक है। उसके बाद इट हैज आल्सो बीन लिंक्ड दैट कोविड-19 हु आर पुट ऑन प्रोलॉन्ग ऑक्सीजनेशन, जो लंबे टाइम तक वेंटिलेशन पे होते हैं, जिनका SpO2 बहुत ज्यादा कम हो जाता है, उसके केस में ये म्यूकोरमाइकोसिस की जो फंगल इन्फेक्शन है वो देखे जाते हैं। इन्फेक्शन से इवन पुअर कंटामिनेटेड वाटर से भी ये हो सकता है। What are the symptoms one needs to be careful of? So black fungus carry a high mortality rate. सबसे ज्यादा 50% तक का रेट इसका होता है। The disease is diagnosed in time. इससे डरने की कोई बात नहीं है। अगर आपको स्टार्टिंग में किसी के भी ऐसे सिम्टम्स हमको कुछ मिलते जुलते हैं तो इमीडिएटली अगर मेडिकल जो भी फैसिलिटीज है उनसे कॉन्टेक्ट करते हैं अगर, तो ये ट्रीटेबल है। सो अकॉर्डिंग टू डॉक्टर द डिजीज प्राइमरीली इन्फेक्ट द फेस। सबसे पहले ये फेस को अफेक्ट करती है, तो आपने इसको एक टर्म दे दिया राइनो ऑर्बिटल सेरेब्रल, क्योंकि इसमें आपको आईज के, सेरेब्रल और ईयर के ये सारे सिम्टम्स आपको देखने को मिलेंगे। में इवन कॉज डिस्टिंक्ट, इवन ये फेशियल डिफॉर्मिटीज भी करता है। अपार्ट फ्रॉम दैट द डिजीज में ऑल्सो अफेक्ट साइनस पैसेज। आप यूं समझ लो कि पूरा मुंह को ये अफेक्ट कर रहा है, ठीक है। उसके बाद म्यूकोरमाइकोसिस कैन प्रूव टू बी अ क्वाइट डेंजरस इफ लेफ्ट अनट्रीटेड। ये खतरनाक तभी हो सकता है, अब लोग सुन के डर जाते हैं कि मतलब इससे उनकी आईज बहुत ज्यादा सीवियरली अफेक्ट हुई, क्योंकि उन्होंने इनिशियल स्टेज पे उसको ध्यान नहीं दिया। अगर उनको थोड़े बहुत माइल्ड सिम्टम्स भी आए, जैसे कि नेजल कंजेशन बहुत हुआ या हल्का हल्का आंखें ब्लैकिश लगने लगी, तो स्टार्टिंग में ही उनको जो है माइल्ड सिम्टम्स पे ही डॉक्टर के पास जाना चाहिए, ठीक है। उसके बाद म्यूकोरमाइकोसिस कैन प्रूव टू बी डेंजरस इफ लेफ्ट अनट्रीटेड। पेशेंट के नोज, जॉ सबको अफेक्ट करता है। इवन ब्लैक क्रस्ट देखने को मिलते हैं, स्वेलिंग मिलती है नेजल पैसेज में, एंड द आईज इज अ पिक्यूलर फीचर। सबसे ज्यादा ये आईज में देखा जाता है। इन मेनी सीवियर केसेस सर्जरी में बी इवन रिक्वायर्ड टू रिमूव जॉ बोन्स ऑफ द नोज। गुड इवनिंग, आई सौरभ शिवरे, स्टूडेंट ऑफ बीपीटी फाइनल ईयर, सेम्स इंदौर। मेरे अभी इस वेबिनार में मेरी मिक्स लैंग्वेज रहेगी, हिंदी एंड इंग्लिश। मैं कंप्लीट कोशिश करूंगा कि एक सिंपल लैंग्वेज में कैसे हम एक रिपोर्ट को डायग्नोस कर सकते हैं। आज के टाइम पे मेडिसिन, ड्रग, फार्मा में हम बहुत नाम ऐसे सुन रहे हैं जो कंटिन्यूसली सुनते हैं हम, रेमडेसिविर हो, फिर वो टॉसिलिजुमैब हो या स्टेरॉइड्स हो, उन सब के बारे में, प्लस उनके आगे क्या क्या रिसर्चेज चल रही है उनके बारे में, एंड मोस्ट हॉट टॉपिक वैक्सीन। हम इन तीनों को कंप्लीट आज देखने की कोशिश करेंगे। तो just we started with the vaccines. Just we started with the firstly diagnosable reports. Just a second. Yes. Screen is visible. Am I audible? अगर all over number होगा कारण नंबर भी ठीक है। Yes sir, you are audible. You are audible. हमारे, अब प्लीज इसके स्क्रीन पे कोई भी कुछ मत करना। हम डायग्नोस में 3 टेस्ट बहुत कंप्लीटली देखते हैं। एक पहला हम देखते हैं एंटीजन टेस्ट, दूसरा है हमारा आरटीपीसीआर और तीसरा है हमारा HRCT। तीनों को कंप्लीटली हम उनको समझने की कोशिश करेंगे, चाहे आप मेडिकल से हो या आप ना हो। अगर आपके हाथ में कोई भी रिपोर्ट दे दी जाए तो आप उसको एटलीस्ट इतना पढ़ सके, आप उसके बारे में इतनी जानकारी ले सके। अगर आपके पास आसपास कोई नहीं है तो आप उसको समझ सके कि एटलीस्ट रिपोर्ट में क्या लिखा हुआ है। सबसे पहले कुछ एंटीबॉडी से रिलेटेड इसमें बहुत कंफ्यूजिंग रहता है। पहले हम एंटीजन एंटीबॉडी टेस्ट से पहले हम इसकी एंटीबॉडी को समझने की कोशिश करते हैं। जनरली एंटीबॉडीज क्या होती है? एंटीबॉडीज आर प्रोटीन मेड बाय इम्यून सिस्टम टू फाइट इन्फेक्शन। इन कोविड जो आज की डेट में जो एंटीबॉडीज बन रही हैं वो इवन कुछ डेज तक चल रही हैं, इवन कुछ वीक्स तक चल रही है, कुछ लोगों में कुछ मंथ्स तक ट्रेवल कर रही है। लेकिन सब में अगर हम आज की बात करें तो ये बहुत अननोन हो गया है कि हाउ लॉन्ग दे स्टे इन बॉडी और ब्लड। तो कोविड-19 वायरस के
जो हमारी बदले में बॉडी में जो हमारे बन रहा है कि उसकी कितने टाइम पीरियड तक वो स्टे करेगा, उसके लिए हमारे में कोई टाइम पीरियड नहीं है। इससे ही रिलेटेड एक सबसे पहले टेस्ट हम पढ़ने जा रहे हैं जो सबसे शॉर्ट एंड सिंपल है, दैट इज एंटीजन टेस्ट। एंटीजन टेस्ट नाम से ही समझ रहे हैं एंटीजन टेस्ट क्या हो सकता है, क्या कि हमारे बॉडी में अगर जैसे कि सुरभि में हमने बताया कि हमारे बॉडी में ये वायरस एंटर करता है इन द फॉर्म ऑफ एंटीजन, और हमारी बॉडी उसके बदले में क्या बनाती है, एंटीबॉडीज बनाती है। तो अब हम ये समझ सकते हैं कि ये टेस्ट इतना स्पेसिफिक इसलिए नहीं हो पाएगा क्योंकि किसी भी एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन करने में बॉडी को एक टाइम पीरियड लगता है, पहली चीज। दूसरी चीज, ये वाला टेस्ट इस पे भी डिपेंड करेगा कि आपके बॉडी में जो एंटीबॉडीज की क्वांटिटी है क्या वो इतने मेजरमेंट के लायक है वो टेस्ट में हम जिसको पकड़ सके, ये भी बहुत बड़ा क्वेश्चन आ रहा है। तो फिर ये टेस्ट को लाने की जरूरत क्या पड़ी? टेस्ट को लाने के लिए अभी प्रेजेंट में अगर आप देखेंगे तो एक मास कम्युनिकेशन हो गया था, इतने सारे लोग जो सडन होने लग गए थे हमारे पास। अगर हम सबसे पहले हर डॉक्टर हमको यही बोलता है कि आप आरटीपीसीआर करा के आइए, मगर आरटीपीसीआर को लेने में विद इन 72 आवर्स का टाइम लग रहा था। फिर हमने उसके बदले में एक रेसिप्रोकल लेके आए, हमने कि एक एंटीजन टेस्ट कराया जो कैसा था, जो वो भी स्वैब टेस्ट था, मगर वो क्या डिटेक्ट करता था, वो हमारे बॉडी में जो वायरस है उसका एंटीजन उसको डिटेक्ट करता था। और ये बहुत इमीडिएट टेस्ट था, विद इन 30 मिनट में आपको बता देता था कि आप पॉजिटिव हैं कि नहीं। मगर इस टेस्ट में बिल्कुल क्लियर आउट आपको मेंशन करके दिया जाता है कि अगर आप इफ इन केस पॉजिटिव है तब भी आप आरटीपीसीआर कराएंगे और आप नेगेटिव है तब भी आप आरटीपीसीआर कराएंगे। ये आपके लिए एक जनरल इंफॉर्मेशन हो जाती है फॉर इमीडिएट पीरियड के आप भी अगर आपको आरटीपीसीआर में नियर अबाउट 48 टू 72 आवर्स लगने वाले हैं तो उससे पहले आप एक एंटीजन टेस्ट करा लीजिए और एक श्योरिटी का लेवल अपने पास आप रख सकते हैं। ये हमारा एक एंटीजन टेस्ट था। इससे ही रिलेटेड हमारा आज की डेट में एक नया टेस्ट आ गया है, एक नया टेस्ट आ गया है जिसको अभी ही लॉन्च करा गया है। दैट इज रैपिड एंटीजन टेस्टिंग किट। ये अब आजकल अभी ये किट मार्केट में बहुत जल्दी आने वाली है, माई लैब के द्वारा बनाई गई है। ये टेस्ट किट होम के लिए होगी, आप घर पर जैसे बहुत सारी, चाहे फिर वो हमारे लिए जैसे बहुत सिंपल एक प्रेगनेंसी किट होती है, बिल्कुल उसी तरीके से हमारी किट होगी। इसमें क्या रहेगा आगे चल के, बिल्कुल ये एंटीजन टेस्ट है, रैपिड एंटीजन है, विद इन 2 मिनट्स आपको बता देगी आप पॉजिटिव हैं कि नहीं। अगेन फिर वही बात, मगर ये इतनी श्योरिटी वाली नहीं होगी क्योंकि ये चीज डिपेंड करेगी कि आपके बॉडी में एंटीजन की क्वांटिटी कितनी है। अगेन पहली चीज। दूसरी चीज, ये स्वैब टेस्ट से लेनी है, आपको खुद स्वैब टेस्ट करना है। मगर इसमें एक फायदे वाली बात है क्या कि आरटीपीसीआर में जब हम स्वैब टेस्ट करते हैं, आपने कभी देखा हो या खुद फील करा हो, अगर हम नोज में डालते हैं तो हम उसे नेजोफेरिंग्स तक टच करते हैं और अगर हम माउथ में डालते हैं तो हम उसे ओरोफेरिंग्स तक टच करते हैं। इतना हम खुद से एक्टिवली नहीं कर सकते। तो फिर इसका जो स्वैब टेस्ट होता है वो विद इन अ रेजिस्टेंस तक होता है कि आप स्वैब टेस्ट नोज में डालिए, आपको एक रेजिस्टेंस फील हो जाए, बस वहीं एंड कर दीजिए। देन वो स्वैब टेस्ट को आप यहां टच करके आपको इसके साथ एक लिक्विड मिलेगा, एक ड्रग अमाउंट मिलेगा, उसको यहां पर करेंगे 2 मिनट के अंदर आपको पता चल जाएगा कि आप पॉजिटिव हैं कि नहीं है। ये किट आईसीएमआर लेके आई है, इसका नाम है रैपिड एंटीजन टेस्टिंग किट, जिसको कोबी सेल्फ के नाम से आया। इसको माई लैब डिस्कवरी सॉल्यूशन ने बनाया। ये विद इन 2 मिनट टेस्ट है और ये स्वैब टेस्ट है। ये तो हमारा बिल्कुल सबसे कॉमन टेस्ट हो गया। मगर आज की डेट में जिस तरीके से हमारा जो कोरोना राइज कर रहा है, इसके लिए हमें एक बहुत ही ज्यादा एक इवेंचुअली और एक इतना ज्यादा एक डायग्नोसिबल मीडियम चाहिए जिसमें हम एटलीस्ट समझ सकें। तो सेकंड वन हमारा मोस्ट इंपॉर्टेंट आता है, दैट इज आरटीपीसीआर। मगर अगेन इसके भी हम बहुत सारे आपको प्रोज और कॉन बताते चलेंगे। आरटीपीसीआर होता क्या है, नाम से समझने की कोशिश करते हैं। जो हमारे इसमें अभी मेडिकल वाले लोग हैं वो उसको और अच्छे से समझने की कोशिश करेंगे, मगर नॉन मेडिकल से उनको भी बहुत अच्छे से समझ आएगा। हम ट्राई करते हैं। आरटीपीसीआर का फुल फॉर्म होता है रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन पॉलीमराइज चेन रिएक्शन। जैसे कि सुरभि मैम ने हमको एक्सप्लेन करा था कि ये वायरस आरएनए की फॉर्म में होता है और हमारे बॉडी में जाता है। तो हमारे बॉडी में ये करता क्या है, हमारे बॉडी में जो सेल्स है, सेल के अंदर न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के अंदर डीएनए है। तो ये अपना आरएनए उस डीएनए के अंदर डालकर हमारे डीएनए को आरएनए में रेप्लिकेट कर देता है। इसी तरीके से तो रहता है। और क्या करते हैं हम इस टेस्ट में, क्या करेंगे, अगर आपने ट्रांसक्रिप्टिव प्रोसेस पढ़ी है, हमारे बॉडी में एक प्रोसेस चलती है, डीएनए से आरएनए बनता है। हमारी बॉडी में सबको पता है, प्रोटीन बनाने के लिए डीएनए से आरएनए बनता है, जिसको बोलते हैं ट्रांसक्रिप्टेस।
और आरएनए से प्रोटीन बनता है, जिसको बोलते हैं ट्रांसलेशन। यानी इसका मतलब क्या है कि हमें रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन चलानी है, यानी हमें जो हमारे स्वैब टेस्ट से हमारे सेल्स निकालते हैं उनके आरएनए को रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन चला के हम डीएनए में कन्वर्ट कर देते हैं। डीएनए में कन्वर्ट करके फिर क्या हम उसकी बहुत सारी चेन्स बना लेते हैं और चेन बनाकर उसको हम वायरस के साथ मैच करते हैं। पॉलीमराइज्ड मानी पॉलीमराइज्ड चेन रिएक्शन, एक चेन की फॉर्म में बना लिया जिसको हमने, और फिर हम उसे वायरस के साथ मैचिंग करते हैं। यानी एक तरीके से मैं अगर बोलूं तो हम इसमें साइकिल्स चलाते हैं। हमने एक मैक्सिमम साइकिल का गोल सेट करके रखा है। क्या है वो मैक्सिमम साइकिल? मैक्सिमम साइकिल पहले 25 थी, मगर अब महाराष्ट्र के बाद जो हमारी मैक्सिमम साइकिल है वो अभी महाराष्ट्र ने इसको चेंज कर दिया। अब जो नया आया है वो है 35। इससे आपको एक नई चीज पता चलेगी। आप ये तो आपको हर कोई देख के बता देगा कि आरटीपीसीआर में ये रिपोर्ट अगर पॉजिटिव है, आपने पढ़ दिया ये रिपोर्ट पॉजिटिव है, ठीक है, मगर ये कितनी पॉजिटिव है, इससे वायरल लोड कैसे पता चलेगा? पेशेंट की रिपोर्ट अगर मैं आपके हाथ में 2 पॉजिटिव रिपोर्ट दे दूं और बोल दूं कि दोनों पॉजिटिव है, दोनों में क्या डिफरेंस है, वो डिफरेंस आपको शो करता है सीटी वैल्यू। सीटी यानी साइक्लिक थ्रेशोल्ड वैल्यू। ये आपको बताएगी कि एक पेशेंट के अंदर वायरल लोड कितना है। किस तरीके से बताएगी? बहुत सिंपल होता है। हम गवर्नमेंट ने बोला है कि आप इस टेस्ट के लिए 35 साइकिल्स चलाइए, 35 साइकिल चलाइए। अगर 35 साइकिल तक में ये वायरस हमारी बॉडी के अंदर मिल जाता है तो आप इस पेशेंट को कोविड पॉजिटिव बोलिए, और कितने ड्यूरेशन में मिल जाता है आप उसकी C2 वैल्यू लिखिए। मतलब क्या, अगर मैं 0 से स्टार्ट करूंगा और 35 तक साइकिल चलाऊंगा, 35 में एक आपको होल नंबर ले रहा हूं, बाकी ये पॉइंट में आता है, तो मैं आपको एक जनरल आइडिया के लिए मैंने 35 एक पूरा होल नंबर ले लिया है, बाकी बाद में 223.26 24.61 इस तरीके से पूरा रहता है, मगर हम इसको एक आइडियली ले लेते हैं, एक होल नंबर में इसको हम काउंट करते चलते हैं। तो 0 से लेकर 35 तक ये रहता है। इसमें मोस्ट इंपोर्टेंटली हम 0 से स्टार्ट करते हैं, यानी 1 का मतलब क्या, 1 आया यानी हमने एक साइकिल चलाई और हमने एक साइकिल में देखा क्या बॉडी के अंदर वायरस मिला। हमने अगर मिल गया तो पॉजिटिव बोल दो, नहीं मिला तो फिर दूसरी साइकिल चलाओ, फिर तीसरी चलाओ। ऐसे चलाते चलाते आपको मैक्सिमम 35 साइकिल चलाने को बोला। अगर देख लो पेशेंट के अंदर अगर विद इन 35 साइकिल्स के अंदर अगर वायरस मिलता है तो आप उसे पॉजिटिव कह दिए, और आपने 35 साइकिल चला ली और फिर भी वायरस नहीं मिल रहा है तो आप इस पेशेंट को कोविड नेगेटिव बोल दीजिए। इसका यही रूल होता है C2 वैल्यू, CT वैल्यू। अब मैं आपसे एक बिल्कुल सिंपल सा लॉजिक पूछ सकता हूं कि अगर किसी पेशेंट का जो वायरल लोड है वो 10 पर मिला, यानी उसका साइक्लिक थ्रेशोल्ड कितना रहा, 10 रहा। एक दूसरा पेशेंट है जिसका वायरल लोड है 15 पे मिला, 15 पे मिला, यानी जिसका जो CT वैल्यू था वो 15 रहा। तो मैं आपसे पूछ सकता हूं कौन से पेशेंट के अंदर वायरल लोड ज्यादा होगा, 10 वाले के अंदर कि 15 वाले के अंदर? 10 वाले के अंदर। कैसे ज्यादा होगा? क्यों? क्योंकि हमें मिनिमम साइकिल चलानी पड़ी, हमें सिर्फ 10 साइकिल चलानी पड़ी और हमने वायरस को पकड़ लिया। मगर दूसरे पेशेंट के अंदर हमें 5 साइकिल एक्स्ट्रा चलानी पड़ी, यानी हम 15 पे पहुंचे। तब हमने देखा कि अच्छा इसके अंदर अब जो कोविड का वायरस है वो मिला है। यानी ये CT वैल्यू अगर हम सिंपल लॉजिक बोल दे कि वो जो वैल्यू 35 के जितने पास होगी, जितने नजदीक होगी, उस पेशेंट में लोड उतना ही कम होगा, और जो वैल्यू 35 से जितनी दूर होगी यानी 0 की जितने नजदीक होगी वो उस पेशेंट में उतना ही ज्यादा वायरल लोड होगा। तो ये मैंने आपको एक सिंपल इंफॉर्मेशन दी कि कोविड पॉजिटिव रिपोर्ट तो आप अपने हाथ में देख लेंगे, मगर एक CT वैल्यू से आपको कैसे देखना है। अगेन ये पॉइंट वाइज इसलिए होता है कि सिर्फ 35 साइकिल नहीं चलती, पॉइंट्स में साइकिल चलती है, मगर हमने एक ऐसा होल नंबर लेकर उसको समझने की कोशिश की। तो हम 23.26 को 23 मान लेंगे, है ना। इस तरीके से ऐसे ये साइकिल्स आपको बता देती कि इस पेशेंट के अंदर वायरल लोड कितना है। मैं कहूंगी ये पेशेंट है जिसके अंदर 23 है, सपोज 23, और एक दूसरा पेशेंट है जिसके अंदर 25 है, तो इस वाले पेशेंट के अंदर वायरल लोड ज्यादा है कि ये जो 25 वाला पेशेंट है इसके अंदर आपको वायरल लोड ज्यादा देखने को मिलेगा। ये 23 वाले पेशेंट के अंदर आप इससे ज्यादा वायरल लोड देखने को मिलेगा क्योंकि आपको 2 साइकिल कम चलानी पड़ी। ठीक है, तो ये हमने CT वैल्यू के लिए देखा। अब इसके अंदर हम कुछ गवर्नमेंट्स के पॉइंट भी देख लेते हैं जो जिसको हम हमेशा निगलेक्ट करते हैं, मगर गवर्नमेंट हमेशा कहती है कि आप उसको समझिए। क्या रहते हैं वो पॉइंट? अगर आपने कभी नोटिस करके पढ़े हैं वो पॉइंट्स क्या कहते हैं? थर्ड पॉइंट पढ़िए। गवर्नमेंट हमको बोलती है कि ये अगर आपका
आरटीपीसीआर इवन पॉजिटिव भी आ जाए या नेगेटिव भी आ जाए, a positive test result is only tentative and will reconfirmed by retesting। यानी भले आपका टेस्ट चाहे नेगेटिव आ रहा है या पॉजिटिव आ रहा है, आप उसको टेंटेटिव मानेंगे। टेंटेटिव का मतलब क्या है कि सिर्फ अभी कुछ समय के लिए, ये कंफर्मेशन नहीं है। कंफर्मेशन के लिए फिर क्या करना है, बोले विद इन 2 to 4 डेज के बाद फिर से आपको एक आरटीपीसीआर और करानी है, चाहे आप नेगेटिव हो चाहे पॉजिटिव हो। तो ये गवर्नमेंट का नोटिस है, याद रखना है कि भले आप में से किसी का भी को आप, ये बहुत कॉमन हो गया है। इवन क्यों हो गया, इवन एक रिसर्च में ऐसा समझ में आया कि 44% नियर अबाउट सिर्फ और सिर्फ स्वैब टेस्ट की गलती की वजह से रिपोर्ट नेगेटिव आ जाती है। क्यों आ जाती है, हम इतने फ्रस्ट्रेशन हम खुद भी हो चुके हैं, लेने वाले भी। मैं एक कॉमन बात कर रहा हूं, जब हमारे भी स्वैब टेस्ट करा जाता है नेसोफेरिंक्स में, तो हम भी इरिटेट होकर एकदम पीछे की तरफ कर जाते हैं। अगर प्रॉपर स्वैब नेसोफेरिंक्स तक टच नहीं करेगा तो प्रॉपर हम वायरस की क्वांटिटी लोड नहीं समझ पाते। इसलिए आरटीपीसीआर में बिल्कुल बोला गया है कि हर दूसरे दिन बाद, दूसरे से तीसरे दिन बाद, आप चाहे नेगेटिव है या पॉजिटिव है, आप अपना आरटीपीसीआर दोबारा कराएं। ठीक है, तो यानी 2 टेस्ट हमने, एक एंटीजन टेस्ट को समझा, दूसरा हमने कौन से टेस्ट को समझा, दूसरा हमने टेस्ट को समझा अपना आरटीपीसीआर। अब वहीं हम तीसरे टेस्ट की तरफ चलते हैं। तीसरा टेस्ट क्या है, तीसरा टेस्ट हमारा होता है एचआरसीटी, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इससे अच्छा कोई नहीं बता सकता कि आप में कोविड है कि नहीं, मगर ये उतना ही खतरनाक है। क्यों है, एचआरसीटी का मतलब क्या होता है, एचआरसीटी का मतलब होता है हाई रिजोल्यूशन कंप्यूटराइज्ड टोमोग्राफी। सीटी आप सब जानते हैं, एचआर का मतलब होता है हाई रिजोल्यूशन। कंप्यूटराइज्ड टोमोग्राफी में क्या यूज करा जाता है, एक्सरे ही यूज करते हैं। एक्सरे से जनरल एक्सरेज होती हैं, वो ही यूज करी जाती है, और वो क्या एक 3D के स्ट्रक्चर्स में यूज करी जाती है। कंटिन्यूअसली 3D के स्ट्रक्चर में यूज करके फिर उसको कंप्यूटर के द्वारा हम एक 2D प्रिंट में उतार लेते हैं, इसलिए उसका नाम पड़ा है कंप्यूटराइज्ड टोमोग्राफी। यानी एक्सरे को 3D की फॉर्म में आपके ऑर्गन्स पर डालते हैं, जहां भी हमें सीटी स्कैन लेना है, फिर उसको हम कंप्यूटर के द्वारा एक 2D प्रिंट में ले लेते हैं। ऐसा नहीं है कि सीटी स्कैन इसके लिए करी गई। सीटी स्कैन मोस्ट कॉमनली बहुत पहले निमोनिया हो, सीओपीडी, कोई भी लंग्स इन्फेक्शन हो, हम एचआरसीटी करते थे। एचआरसीटी आपको कभी ये नहीं बताता कि आप कोविड पॉजिटिव हैं या नहीं, तो फिर क्या बताता है, एचआरसीटी आपको ये बताता है कि परसेंटेज ऑफ इन्फेक्शन, क्योंकि ये किसका हो रहा है, लंग्स का हो रहा है। जैसा कि सुरभि मैम ने बताया कि इसकी मोस्ट फेवरेबल जगह कौन सी है, लंग्स है, हमारा पल्मोनरी है। तो ये हमें सबसे पहले ये बताने की कोशिश करता है कि आपके लंग के अंदर इन्फेक्शन कितना है। इसके अंदर हम 3 मोस्ट इंपॉर्टेंट वैल्यू को समझने की कोशिश करेंगे कि जब भी आपके हाथ में अगर ये एचआरसीटी की रिपोर्ट आ जाए, तो आप इसके अंदर टोटल 4 वैल्यूज आपके सामने होंगी, और उससे आपको देखना पड़ेगा पेशेंट कितना पॉजिटिव और कितना नेगेटिव है, यानी इन्फेक्शन उसके अंदर कितना ज्यादा है। सबसे पहले हम इसमें समझते हैं सीटी वैल्यू। अब आप अगेन फिर बोलेंगे कि सर इसमें भी सीटी वैल्यू आ गई, आरटीपीसीआर में भी सीटी वैल्यू थी। इसमें बहुत ज्यादा लोग कंफ्यूजन करते हैं। आरटीपीसीआर में जो सीटी वैल्यू होती है वो साइक्लिक थ्रेशोल्ड होता है, और इसमें जो सीटी वैल्यू होती है वो सीटी सीवीटी यानी कंप्यूटराइज्ड टोमोग्राफी की सीवीटी होती है। इसमें बिल्कुल उल्टा होता है। कैसे उल्टा होता है, इसमें सीटी वैल्यू है वो 25 मैक्सिमम मार्किंग दी जाती है आउट ऑफ जितना आपका इन्फेक्शन हुआ है। यानी इसमें क्या उल्टा हो गया कि अगर 25 आउट ऑफ 25 आ गया तो आप मैक्सिमम इन्फेक्टेड हो। यानी उसमें क्या था, उसमें हम आगे की तरफ जा रहे थे तो कम कर रहे थे, लेकिन ये इसमें ऐसा कुछ नहीं है, कोई ये साइक्लिक तुलना है, ये तो आपको परसेंटेज ऑफ इन्फेक्शन बता रही है, सिंपल। तो इसमें 25 मैक्सिमम दिया है। कैसे दिया है 25 मैक्सिमम, जरा थोड़ा सा समझने की कोशिश कर लेते हैं इसको। हमने हमारे लंग्स देखे हुए हैं, ये हमारा राइट लंग है, ये हमारा लेफ्ट लंग है। जैसे कि हम जानते हैं कि लेफ्ट लंग के साइड हार्ट प्रेजेंट रहता है, तो उसमें केवल 2 ही लोब रहते हैं, अपर लोब और लोअर लोब। और इसमें कितने, इसमें 3 लोब प्रेजेंट होते हैं, अपर, मीडियल एंड लोअर। अब हर लोब को आप 5 ग्रेड दो। 5 ग्रेड दो, कितने ग्रेड देना है, 5 ग्रेड दो। अगर मैं 5, अब लोब कितने हो गए, 1 2 3 4 5, यानी 5 into 5 कितना हो गया, 25, यानी 25 हमारा मैक्सिमम। हमें हर लोब का काउंट करके उसका सम करके यहाँ पे रख के फिर हम निकालते हैं। प्लीज जो भी आप अपना माइक म्यूट कर लीजिए। सौरभ सर, वन रिक्वेस्ट। हाँ यस
सौरभ सर, आपकी जो स्क्रीन आपने शेयर की है वो प्रॉपर नहीं शो हो रही है, सबको ऐसे मैसेजेस आ रहे हैं। Can I share it again? So please zoom out the screenshots or the images. I already zoom out. मैं दोबारा शेयर करता हूँ, वेट अ सेकंड। या हाँ, now it's visible or? Yes, sir. हाँ, Yeah, it's visible. तो इसमें हमने क्या बोला कि हमें परसेंटेज ऑफ इन्फेक्शन इसका पेशेंट का देखना था। Sir, just a minute. हाँ, Also, audience you can zoom out yourself also on your own on your own screens. आप अपने स्क्रीन पर भी आप इमेजेस को जो है वो zoom out कर सकते हैं। Yes, sir. Please continue. ओके, थैंक यू। तो हम क्या बात कर रहे थे, हमने बोला था जो मैक्सिमम है वो हमारा 25 है। क्योंकि 5 लोग थे, 5 into 5 हमने मैक्सिमम एक लोग को 5 देना है। अब वो हम 1 2 3 4 5 देंगे कैसे, ये भी तो पता होना चाहिए। तो फिर नेक्स्ट स्केल समझते हैं। नेक्स्ट स्केल होती है हमारी परसेंटेज इन्वॉल्वमेंट। क्या होता है, ये हमारे लंग्स है। अब लंग्स में कितना इन्फेक्शन फैल गया है उसको परसेंटेज में देखा जाता है। अगर 5% से, अगर एक लोब की बात कर रहे हैं हमने क्या बोला, अभी एक लोब को 5 में लेंगे। अगर पहले एक लोब पकड़ लो, आप समझ लो मैंने लेफ्ट लंग का लोअर लोब पकड़ लिया, अगर उसमें 5% से इन्फेक्शन कम होती है तो हम उसको स्कोर देते हैं 1, 5 to 25 में 2, 25 to 50 में 3, 50 to 75 में 4, अगेन 75 से ज्यादा हो जाए तो 5। इसी तरीके से हम पांचों लोब का टोटल करके उसको यहां पर देख लेते हैं कि वो आउट ऑफ 25 कैसे आ रहा है। यहां देखिए, बिल्कुल क्या प्यारा एग्जांपल। ये हमारे दोनों लंग्स है, राइट लंग और लेफ्ट लंग। ये हमारा अपर लोब, और अगर इसमें देखें तो हम 3 लोब है, अपर, मिडिल एंड लोअर। अब इसमें क्या देखा है आप खुद देखिए, राइट अपर लोब यानी ये राइट का अपर लोब में 0 है, कोई इंफेक्शन नहीं है। राइट के मिडिल लोब में यानी 1 का मतलब क्या है कि 5% से लेस इंफेक्शन है। राइट के लोअर लोब में 1 यानी अगेन इसमें 5% से कम इंफेक्शन है। लेफ्ट के अपर लोब में 1 यानी 5% से कम इंफेक्शन है। 2 यानी 5 से लेकर 25% तक इंफेक्शन प्रेजेंट है। ये हो गया कि नहीं। अब इसी तरीके से सबका निकाल के हमने सम अप कर लिया, और इस पेशेंट का कितना आया CT/CBLT 5, कितना आया 5। अब इसकी भी 5/25 इस पेशेंट की CT/CBLT है। अब इसमें क्या सिंपल सा लॉजिक होता है, अगर पेशेंट की 8 से कम आ रही है तो आप उसको माइल्ड बोल देते हैं, ठीक है। और वहीं 8 से लेके 15 तक आती है तो आप पेशेंट को बोल देते हैं कि मॉडरेट है। और अगर 15 से ऊपर आ रही है तो पेशेंट सीवियर है। और सीवियर 15 कब आएगी, आप इमेजिन करके देखो 15 कब आएगी। अब तीनों लोग में, जब तीनों लोग में एटलीस्ट 3 होना चाहिए, और 3 लोग का 50% यानी ऑन एन एवरेज आपके पूरे लंग्स, लेफ्ट और राइट दोनों लंग्स एटलीस्ट 50% इन्फेक्टेड हो चुके हों, तब आप सीवियर पेशेंट कहलाएंगे, ठीक है। माइल्ड में कब, कि नियर अबाउट 50 से कम, 30 to 40 के अप्रॉक्स। ये हमारा क्या रहता है, ये हमने अपर लोब का समझा। इसी तरीके से एक इसमें वैल्यू और रहती है, उसको हम अभी आगे देखते हैं क्या होता है, लेकिन हम उससे पहले कुछ एक CT स्कैन का विजुअल देख लेते हैं। ये इस तरीके से CT स्कैन होता है, कोविड पेशेंट का CT। आप इसमें बिल्कुल विजुअली, आप हमेशा याद रखिए कोई भी एक्सरे देखें या CT, जो ब्लैकिश एरिया होता है वो हमारा गैस होता है। जितना, यानी क्या, हमारा एयर है, जो गैसियस फॉर्म में होता है वो उतना ब्लैकिश होता है, और जो जितना सॉलिड होता है वो उतना ही व्हाइट होता है। तो ये जो आपको दिख रहा है ना, ये क्या व्हाइटिश एरिया पड़ता जा रहा है, यहाँ ब्लैकिश नहीं रहा, ब्लैक कम हो गया। इसका मतलब क्या, ये पार्ट इन्फेक्टेड हो गया, यहाँ एयर नहीं पहुंच पा रही है। अगर यहाँ एयर पहुंच पाती तो ये एरिया ब्लैक रहता, ठीक है। इसी तरीके से और प्रॉपर अगर हम समझे तो आपको लंग का एक्सरे दिखा देता हूं CT स्कैन की जगह। ये देखिए कंप्लीटली, बिल्कुल आप इसमें आप खुद बता सकते हैं कि देखो ये आपका, अब ये मत समझना ये एरिया व्हाइट हो गया, यहाँ पर हर्ट रहता है आपका, ठीक है। ये आपका लंग है, लेफ्ट लंग, इसमें 2 लोब रहते हैं, अपर लोब और लोअर लोब। अब इसमें आप खुद बोल सकते हैं कि लोअर लोब कितना ज्यादा अफेक्टेड हो गया। नियर अबाउट आप इस लोअर लोब को अगर 5 में से देंगे तो आप 3 दे देंगे अपने आप। और इसमें बोले अपर लोब आपको क्लियर दिख रहा है, अगर मैक्सिमम देंगे तो आप 1 देंगे। और अगर मैं इस राइट लोब को 3 में डिवाइड करूं अगेन, तो अपर लोब आपको क्या बिल्कुल मिनिमम दिख रहा है, मिडिल लोब दिख रहा है, और लोअर लोब तो मैक्सिमम दिख रहा है। तो इससे हम क्या पता करते हैं, CT/CBLT
पता करते हैं। अगेन इसमें एक वैल्यू और आती है, हमने 3 वैल्यू अभी तक देखी, परसेंटेज में देखा, फिर हमने उसका टोटल करा पर लोब में टोटल करने के बाद फिर हमने उसका आखिरी में देखा क्या कि सीबीएलटी कितनी है उसका सम अप करके लास्ट में एक वैल्यू आती है, वो हमारी रहती है कोरट्स का मतलब क्या होता है, इसमें आपको कुछ फाइंड करने की जरूरत नहीं होती, ये आपको सीटी के अंदर विद इन आपको इस तरीके से मेंशन करके दे दी जाएगी। जैसे इस पेशेंट में आप देखिए, पेशेंट दूसरे पेशेंट की रिपोर्ट है, राइट अपर लोब में 20 to 30% इन्फेक्शन इन्वॉल्वमेंट 3, इसमें 3 दिया है, और राइट अपर लोब में लोअर लोब में 3, राइट मिडिल लोब में 2 और लेफ्ट अपर लोब और लोअर लोब में 3 4। अब टोटल इसका कर लीजिए, कितना टोटल होगा, 4 3 से कितना हो गया, 3 3 6 6 9 9 11 11 4 15 और 15 आउट ऑफ 25, यानी ये पेशेंट मॉडरेट टू सीवियर की तरफ है। आप बोल सकते हैं 25 आउट ऑफ 15 यानी मॉडरेट टू सीवियर की तरफ, यानी इस पेशेंट का नियर अबाउट अगर हम दोनों लंग्स का देखें तो 40 to 50% लंग इन्फेक्टेड इस पेशेंट का हो चुका है ऑन एन एवरेज। वहीं इसमें आपको देखो सीटी सीवीटी स्कोर 15 लिखी हुई है कि नहीं, बिल्कुल मेंशन है, और लंग पैन का 35 to 45% लंग इन्फेक्शन देखने को मिला। हमें पढ़ने की जरूरत नहीं है, हमने खुद सब कुछ गैस करके और पढ़ के इसको निकाला। वहीं इसमें कोरट्स भी दिए जाते हैं, कोरट्स में आपको सिर्फ मेंशन करके दे देंगे पेशेंट का जो कोरट्स है 5 है 4 है 3 है 2 है 1 है क्या है, इस तरीके से होता है। अगर पेशेंट का कोरट 1 लिखा हो तो उसमें क्या होता है कि पेशेंट बिल्कुल नॉर्मल है, कोरट 2 हो तो एबनॉर्मेलिटी है, कोरट 3 में कुछ ना कुछ न्यूक्लियर प्रेजेंट है, और कोरट 5 में आप कंप्लीटली बोल देते हैं कि पेशेंट कोविड पॉजिटिव आपका है। इस तरीके से अगर हमारे कुछ, अब हम ड्रग की तरफ चलते हैं, कुछ पहला ड्रग है हमारा रेमडेसिविर। आपने बहुत नाम सुना रेमडेसिविर का। रेमडेसिविर ऐसा नहीं है कि अभी बना है, रेमडेसिविर जो फर्स्ट, ये वैसे तो फर्स्ट ड्रग है जिसको एफडीए ने अप्रूव करा है टेस्टिंग के लिए SARS-CoV-2 के लिए, ठीक है, लेकिन इसमें भी देने की एक शर्त रखी गई है कि 12 साल से नीचे को नहीं दिया जाएगा और 40 kg से जो कम है उनको नहीं दिया जाएगा। इसको EVA यानी इमरजेंसी यूज ऑथराइजेशन के थ्रू इसको लॉन्च करा गया था। ऐसा नहीं है ये पहली बार अभी मिला हुआ है, इनिशियली 2014 में ही मैन्युफैक्चर हो गया था। किसके लिए, हेपेटाइटिस सी के लिए अगेंस्ट, और जो इबोला वायरस होता है उसके लिए, या फिर कोई भी रेस्पिरेटरी सिंड्रोम हो उसके लिए, इन सबको पहले ही, यानी ये ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीवायरल ड्रग है। ये जब भी दिया जाता है पेशेंट का, जब पेशेंट मॉडरेट टू सीवियर जा रहा हो, कब जा रहा हो पेशेंट, मॉडरेट टू सीवियर पेशेंट जाता है, हम इसे तभी देते हैं। ये ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीवायरल ड्रग होता है। ये करता क्या है, ये वायरस के रेप्लिकेशन को रिड्यूस्ड करता है, और ये ड्रग कभी भी अकेले नहीं दिया जाता है। ये ड्रग ऑक्सीजन थेरेपी के साथ, विटामिन सप्लीमेंट के साथ, स्टेरॉइड और ब्लड थिनर और इन सब के साथ इसको दिया जाता है। नेक्स्ट ड्रग हमारा है टॉसिलिजुमैब। टॉसिलिजुमैब ड्रग क्या है, टॉसिलिजुमैब ड्रग इज अ एंटी इंफ्लामेटरी ड्रग। एंटी इंफ्लामेटरी, जैसे सुरभि में हमने बताया था कि सबसे ज्यादा हमारे अंदर लंग्स में हो जाता है इन्फ्लामेशन, तो टॉसिलिजुमैब इज अ एंटी इंफ्लामेटरी ड्रग। अगेन टॉसिलिजुमैब अभी नहीं है, टॉसिलिजुमैब बहुत पहले ही आ चुका था। रोमेटॉइड आर्थराइटिस, ऑटोइम्यून इन्फ्लामेटरी डिसऑर्डर कंडीशन, सबके लिए ये बहुत पहले ही आ चुका था। जब भी हमारे बॉडी में इन्फ्लामेशन होता है, एक प्रोटीन रिलीज होती है दैट इज IL-6, उसको रोकने के लिए टॉसिलिजुमैब ड्रग लगाया जाता है। और टॉसिलिजुमैब ड्रग क्या, अगेन इन्फ्लामेशन कम करता है, इसका काम यही है। और ये भी अगेन आपको मॉडरेट टू सीवियर, यानी हमने क्या देखा कि अभी तक जब भी पेशेंट माइल्ड कंडीशन में होता है, आप उसको सिर्फ सिम्टोमेटिक ड्रग देते हैं, आप उसको कोई भी ऐसे ड्रग नहीं देते जो क्या करें, जो आपके कोविड पे रिलेटेड वर्क कर रहे हैं। क्यों, क्योंकि ये आपकी बहुत ज्यादा इम्यूनिटी को कम करते हैं। अगेन मोस्ट इंपॉर्टेंट ड्रग दैट इज स्टेरॉइड्स। इसको पढ़ाना इसके लिए जरूरी है क्योंकि आज की डेट में ये बहुत बड़ा रीजन बन गया है ब्लैक फंगस का। क्यों, क्योंकि ब्लैक फंगस सिर्फ उन्हीं को हो रही है, या तो जिनको कोविड है या वो कोविड पॉजिटिव हो चुके हैं, यानी क्या वो पोस्ट कोविड फेज में है। तो फिर दिक्कत क्या है, स्टेरॉइड का एक काम होता है, स्टेरॉइड हम बिल्कुल फार्मा में पढ़ के आ चुके हैं बहुत अच्छे से। क्या पढ़ा था हमने फार्मा में, अगर आपने कभी स्टेरॉइड, या जिन्होंने नहीं पढ़ा मैं आपको बता देता हूं, हमारे बॉडी में जब भी इन्फ्लामेशन होता है, बॉडी उसको कम करने के लिए खुद मेहनत करती है। यानी ये हमारे बॉडी का नेचुरल एंटी इन्फ्लामेटरी ड्रग है। मगर इसकी एक प्रॉब्लम है सर, बोले क्या प्रॉब्लम है, इसकी प्रॉब्लम ये है कि ये इम्यूनिटी को भी सप्रेस कर देता है हमारी बॉडी में। हमारी बॉडी में भी अगर ये नॉर्मल से ज्यादा अमाउंट में बन जाता है तो ये हमारी इम्यूनिटी को भी सप्रेस कर देता है। तो इसीलिए सप्रेस द डेवलपमेंट ऑफ इन्फ्लामेटरी रिस्पॉन्स टू ऑल टाइप्स ऑफ स्टिमुलस। मगर इसको स्टेरॉइड्स यानी ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स, मेन स्टेरॉइड्स उसके अंदर आते हैं
ऑल्सो सप्रेस सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी एंड ऑल्सो इनहिबिट एंटीबॉडी प्रोडक्शन। इसी वजह से ही हम स्टेरॉइड्स को पेशेंट में देने से बहुत ज्यादा बचते हैं कोविड के पेशेंट में। क्यों बचते हैं? हम इसीलिए बचते हैं क्योंकि अगर स्टेरॉइड्स देंगे, ये बिल्कुल मॉडरेट कंडीशन में दिया जाता है, हमें लगता है कि पेशेंट के अंदर इतना इन्फ्लामेशन हो चुका है, अब कोई हमारे पास कुछ भी देने के लिए नहीं बचा है, अब फिर आप स्टेरॉइड्स देने की तरफ जाते हैं। मगर वैसे ही पेशेंट वायरस की वजह से इम्यूनिटी इतनी हो चुका होता है, स्टेरॉइड्स अगेन उसकी इम्यूनिटी गिरा देते हैं, और इम्यूनिटी गिराने की वजह से फंगस होने का सबसे ज्यादा, यानी क्या, कौन सा, म्यूकोमाइकोसिस, फंगस होने के सबसे ज्यादा चांसेस है। इसलिए बोला गया है कि हाई डायबिटिक पेशेंट जिनकी इम्यूनिटी लूज होती है प्लस स्टेरॉइड्स वाले जो स्टेरॉइड्स पे पेशेंट है उनमें मैक्सिमम चांसेस होते हैं, चाहे ब्लैक फंगस हो, फिर आपकी भी डिसीज हो, सबकी सब आप पे किस पे डिपेंड करती है? स्टेरॉइड्स, क्योंकि ये आपके एंटी इंफ्लामेटरी होते हैं। इसलिए जब भी याद रखें, कभी भी स्टेरॉइड्स नॉर्मली भी नहीं लेना चाहिए, नॉर्मल भी। इसलिए ही हमने क्या एनसेड्स बनाए आगे चल के, एंटी स्टेरॉइडल एंटी इंफ्लामेटरी ड्रग, मगर उनकी इतनी पावर नहीं होती। स्टेरॉइड्स की हाई पावर होती है मगर उतने ही ज्यादा इसके एडवर्स इफेक्ट देखने को मिलते हैं। अभी गवर्नमेंट ने नई मेडिसिन एक लॉन्च करी है, अगर आप सबको पता हो, इसको इमरजेंसी यूज के लिए लेके आए हैं, डीआरडीओ ने कराई, यानी ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया, डीसीएनआई। उन्होंने एक मेडिसिन लॉन्च करी है जिसका नाम है 2DG मेडिकोस, यानी 2-डीऑक्सी डी ग्लूकोज ओरल पाउडर। ये जो मेडिसिन आपके सामने, इसको डॉक्टर रेड्डी कंपनी ने डीआरडीओ के साथ कोलैबोरेशन करके इस मेडिसिन को बनाया है। ठीक है, ये क्या काम करती है? ये बॉडी में वायरल की सिंथेसिस को रोकती है, प्लस जो वायरल की एनर्जी है उसको भी कम करने की कोशिश करती है। लेकिन इसमें एक बहुत अच्छी फायदा है जो अभी इसलिए स्पेशली इसको किसके लिए निकाला? कोविड के लिए। क्यों? क्योंकि हम, अगर आप जानते हैं, जब भी कोविड वायरस कोविड के पेशेंट के अंदर एंटर करता है तो वो सारे सेल्स को क्या करता है? उन्हें अपनी तरफ खींचने की कोशिश करता है। तो बाकी सब ड्रग्स होते हैं ना, वो अपने सेल्स में और कोविड वाले वायरस के सेल्स में पहचान नहीं कर पाते, तो उनको खत्म करने के चक्कर में अपने भी मैक्सिमम खत्म कर लेते हैं। इस वजह से हमारी इम्यूनिटी और ज्यादा गिरती है। मगर इस ड्रग में अभी ये दावा करा जा रहा है कि अभी ये लॉन्च हुई है, 1 मई से इसको इमरजेंसी में डाला गया है, ये भी मॉडरेट टू सीवियर में ही देते हैं। ये बोला गया कि एक्यूमुलेशन इज वायरली इन्फेक्टेड सेल्स मेक्स दिस ड्रग यूनिक। इसमें क्या बोला गया कि इसका सिलेक्टिव एक्यूमुलेशन है सबसे बड़ी चीज जो इसको सबसे अलग बना रही है, क्योंकि बाकी सब ड्रग तो है मगर वो कंफ्यूज्ड है, वो क्या है, अपने सेल्स, वायरल सेल्स में और खुद के सेल्स में क्लियरिफिकेशन नहीं कर पाते। ठीक है, इट्स ऑल अबाउट फॉर हमारा ये मेडिसिन के लिए हो गया, डायग्नोस के लिए हो गया। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है, दैट्स इज मोस्ट हॉट टॉपिक, वैक्सीन। बहुत सारे लोगों को कंफ्यूजन रहती है कि कोविशील्ड लगवाएं कि कोवैक्सीन लगवाएं, है ना। तो पहले थोड़ी सी उनके बारे में क्या है, जनरल इंफॉर्मेशन के सबसे बड़ा हमारे माइंड में यही कंफ्यूजन है कि विच इज बेटर, कौन सी अच्छी है, कोविशील्ड अच्छी है कि कोवैक्सीन अच्छी है। तो जो हमारी कोवैक्सीन है, जैसे नाम में ही लिखा है कि ये, इसको तो हैदराबाद की कंपनी, जो हैदराबाद बेस्ड कंपनी है भारत बायोटेक, इसने बनाया है, और कोविशील्ड को सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया ने बनाया है। ठीक है, दोनों में अंतर क्या है? बहुत सिंपल सा अंतर है, उसको बस आप समझ लीजिए, आपको बिल्कुल समझ आ जाएगा कि कोवैक्सीन और कोविशील्ड में अंतर क्या है। ठीक है, को जो हमारी कोवैक्सीन होती है, इसके अंदर इनएक्टिवेटेड कोरोना वायरस ही होते हैं। अब आप बोलेंगे सर इनएक्टिवेट, फिर तो हमारी बॉडी में कोरोना कर देगी। नहीं, ये इनएक्टिवेट फॉर्म होते हैं, इनमें इतनी ताकत नहीं होती कि हमारे अंदर ये कोविड कर दें, मगर हाँ, इनमें इतनी ताकत जरूर होती है कि हमारे अंदर की इम्यूनिटी को जगा दें। तो क्या होते हैं, क्या होता है, इनएक्टिवेट वायरस होता है, पर्सन इन्फेक्ट बट स्टिल इम्यून सिस्टम क्या होता है, वो बढ़ जाता है। इसी सेम टेक्निक पे, अगर आपको याद हो, जो हम पोलियो के ड्रॉप पीते हैं, वो इसी टेक्निक पे बनी हुई है। पोलियो के ड्रॉप में भी इनएक्टिवेटेड पोलियो वायरस ही होते हैं। तो बहुत सारे ऐसे ड्रग आपने लगवाए होंगे, इन्फ्लुएंजा, रेबीज, पोलियो, पर्ट्यूसिस, इंसेफ्लाइटिस, ये सारे ड्रग इसी मैकेनिज्म पे चलते हैं कि पर्टिकुलर जिस डिसीज के लिए आप लगा रहे हैं, जिस वायरल के लगा रहे हैं, वही उसके इनएक्टिवेटेड फॉर्म में होता है। यानी कोवैक्सीन में वायरस ही, जो कोरोना वायरस कोविड है, वो ही इनएक्टिवेटेड फॉर्म में डला होता है, मगर कोविशील्ड में इनएक्टिवेटेड फॉर्म में वायरस, कोविड वायरस ही नहीं होता। फिर आप पूछेंगे सर कोविड वायरस नहीं होता तो फिर क्या होता है? ये वर्क करता है वायरल वेक्टर प्लेटफॉर्म टेक्नोलॉजी पे। जरा इसको समझने की कोशिश करना। वायरल वेक्टर प्लेटफॉर्म टेक्नोलॉजी, नाम में क्या समझ आ रहा है? नाम में समझ आ रहा है कि कोई वेक्टर, हम जानते हैं वो किसी भी चीज को लेके चलता है, यानी एक वेक्टर है जो वो पर्टिकुलर इस वायरस को लेके चलेगा, कोविड वाले वायरस को, यानी वो उसे एक प्लेटफॉर्म देगा। चिंपांजी के अंदर एक एडिनो वायरस मिलता है, चिंपांजी के अंदर से एक एडिनो वायरस निकाला गया,
जो वेक्टर का काम करता है वो अपने साथ अपने ऊपर कोविड वायरस को ले लेता है और उसको कंप्लीटली इनएक्टिवेटेड कर देता है, फिर हम उसे कोविशील्ड के थ्रू हमारे बॉडी के थ्रू अंदर एक्टिव कर देता है। यानी चिंपांजी एडिनो वायरस एक्ट एज अ वेक्टर टू कैरी द कोविड-19 स्पाइक प्रोटीन। यानी पूरा कोविड-19 वायरस नहीं लेते इनएक्टिव फॉर्म में जैसे कोवैक्सीन लेते हैं, सिर्फ एक्सक्यूज मी सर, जो स्पाइक प्रोटीन्स होती हैं, जो प्रोटीन। हाँ sorry, I request Mr. Lakshman to please keep your mic off, sir. Lakshman sir, please अपना mic off करिए। तो हम क्या बोल रहे हैं, ये जो प्रोटीन्स की स्पाइक, आपने कोरोना वायरस का स्ट्रक्चर सबने देखा है, बढ़िया रेड कलर का होता है, उसमें से स्ट्रिंग्स निकले हुए होते हैं। वो स्ट्रिंग्स होते क्या हैं, कभी गौर किया है? वो प्रोटीन की स्पाइक्स होती हैं, वो ही हमारे सेल्स में एंटर कर जाती हैं और वायरस अपना आरएनए हमारे डीएनए के अंदर डाल देता है। बस इसी स्पाइक्स को हम निकाल लेते हैं कोविड के वायरस के अंदर और उसे एडिनो वायरस होता है जो चिंपांजी के अंदर मिलता है, उसे वेक्टर की फॉर्म में, यानी उसे एज अ कार यूज करते हैं और उसके अंदर इस प्रोटीन को बिठाल के हमारे बॉडी के अंदर एंटर कर देते हैं। अगेन बस इतना सा अंतर, इसके अंदर इनएक्टिवेटेड फॉर्म में कोरोना ही वायरस है, मगर उसमें कोरोना वायरस नहीं है, उसकी सिर्फ स्पाइक होती है, वो एडिनो वायरस उसको लेके जा रहा होता है। इस टेक्नोलॉजी पे ऐसा नहीं है कि ये टेक्नोलॉजी पहली बार यूज करी गई, जो इबोला वायरस था उसके लिए जो वैक्सीन आई थी वो भी सेम इसी मेथड पर आई थी। तो हमने अभी ये सिर्फ देख लिया कि कोविशील्ड और कोवैक्सीन किस तरीके से बनती थी। दोनों में 2-2 डोजेस लगती है, मगर थर्ड ट्रायल के बाद ये पता चला है कि कोविशील्ड की जो एफिशिएंसी है वो नियर अबाउट 90% है, मगर कोवैक्सीन की 81% के आसपास मिली है। अगर एज देखें तो दोनों 18 ईयर्स के लिए निकाल दी गई है, मगर कोवैक्सीन को 12 ईयर्स तक भी रिसर्चेबल चल रहा है कि आफ्टर 18 इसको 12 ईयर्स, कुछ देशों में तो 12 ईयर्स तक इसको कर भी दिया है भारत बायोटेक की कंपनी ने। ठीक है, अब इसमें सबसे बड़ा एक अंतर आपने बहुत ज्यादा मेजर करा होगा कि हर जगह कोविशील्ड लग रही है, कोवैक्सीन क्यों नहीं लगी। उसका सबसे बड़ा रीजन एक है, अगर आप ना करें, चार्ज, रुपए। क्यों? क्योंकि जो कोविशील्ड है वो गवर्नमेंट को 300 रुपीज में मिलती है और हम आम लोगों को प्राइवेट में 600 में। वहीं कोवैक्सीन अगर हम देखें तो 400 रुपीज में गवर्नमेंट को मिल रही है, मगर प्राइवेट में 1200 में। तो इस प्राइस के चक्कर में ये कोविशील्ड हमको ज्यादा जगह पर देखने को मिलती है, मगर दोनों में कोई भी नहीं। अगर आप देखेंगे एक तरीके से तो कोविशील्ड की ज्यादा एफिशिएंसी है कोवैक्सीन से, मगर नियर अबाउट दोनों सेम होते हैं, दोनों का सेम डोज लगता है। एक गवर्नमेंट की नया गाइडलाइन आया है, तो बस उसको और बताना चाहता हूं कि गवर्नमेंट ने बोला है कि विद इन 20 डेज में अगर आपको कुछ ऐसे सिम्टम्स आते हैं जैसे सांस फूलना, है ना, सीने में दर्द, यानी हमारे क्या चेस्ट में एंजाइना, या फिर सबसे बड़ी चीज रेड पैचेस, लाल धब्बे, ये पढ़ना है तो अगर आप तुरंत डॉक्टर के पास जाइए, क्योंकि अभी नया रिसर्च में थोड़ा सा पता चला है कि ब्लड क्लॉट होने, कुछ पेशेंट्स में ब्लड क्लॉट की कंप्लेंट पाई गई है। तो अगर आपको जब भी लगे कि आपकी स्किन पर रेड पैचेस पड़ रहे हैं आफ्टर वैक्सीन, तो आप तुरंत डॉक्टर के पास जा सकते हैं। कुछ लोगों को कंफ्यूज रहती है कि अगर लड़कियां, मतलब जो गर्ल्स लोग हैं वो ड्यूरिंग पीरियड्स है वो नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है, आप लगा सकते हैं। आप डायबिटिक पेशेंट हो, हाई बीपी, आपको तो और ज्यादा जरूरत है, आपको बिल्कुल। अभी एक और नई वैक्सीन आ गई है रशिया की तरफ से, स्पुतनिक भी, वहीं पर गवर्नमेंट ने लॉन्च कर दिया कि विद इन सितंबर तक हम 2 नई वैक्सीन इंडिया में और लेके आने वाले हैं, दैट इज कोवैक्स एंड सेकंड वन इज नोवावैक्स। और बस एक लास्ट पॉइंट के कोविशील्ड के फर्स्ट और सेकंड डोज में 12 to 16 वीक का डिफरेंस बोला गया है और कोवैक्सीन में 4 to 6 वीक का। अब आपको कोई भी प्रॉब्लम हो वैक्सीन से रिलेटेड, हम उसको लेक्चर के एंड में समराइज करेंगे। थैंक यू, दैट्स ऑल फॉर माय साइड, थैंक यू सो मच। Sir, before ending, I request you to please show all your images from starting to end, please. Okay. Just a second, मैं आपको एक एक करके फिर आपको टॉपिक करके बता देता हूं। सबसे पहले हमने ये देखा था एंटीजन टेस्ट के लिए, दैट इज कोविड-19 कोरोना वायरस टेस्ट। फिर हमने देखा था कि एक होम के लिए घर पर ही जो कोविड सेल्फ टेस्ट आ गया, हमने उसकी इमेज देखी थी। अगेन इसको देखने के बाद हमने एक नेक्स्ट इमेज देखी थी, क्या देखी थी? हमने देखा था आरटीपीसीआर। ये हमने आरटीपीसीआर रिपोर्ट देखी थी, जिसमें हमने आपको पूरी C2 CT वैल्यू, यानी साइक्लिक थ्रेशोल्ड और प्री CT सीवीएलटी में कभी कंफ्यूज मत होना है, ठीक है। तो ये देखा था। इसके बाद हमने क्या देखा? इसके बाद हमने देखा था CT वैल्यू, हमने HRCT समझा था कंप्लीटली। फिर हमने इमेजेस देखी थी, 2 ये और देखा था। देन फाइनली हमने कोरट्स वैल्यू को देखा था कि कोरट्स वैल्यू इस तरीके से उनमें क्या रहता है। फिर फाइनली हम मेडिसिन की तरफ गए और सबसे पहले हमने रेमडेसिविर को समझा,
फिर हमने टॉसिलिजिमेब को समझा, फिर हमने स्टेरॉइड्स को समझा, फिर जो नई मेडिसिन आ गई है फिर हमने उसको समझा, लास्ट वन फाइनल हमने वैक्सीन पर अपना टॉपिक एंड करा। Yeah, completely. That's all from my side. Thank you. Yeah, Saurabh, please change the host option. Yeah, within a second. Thank you. Can I have a question? Thank you so much, sir. Thank you so much, Saurabh, sir. Can I have a question? Hello. Can I have a question? Sir, you can drop your queries in the chat box section. We will discuss it. We have one more presentation. It's a simple question that when Yeah, please. Hello. it's a simple question. Yes, sir. 1 minute. Please. See, first dose is taken and You are not audible, sir. Hello. Hello. Sorry, sir, you are not audible. So thank you so much, Saurabh, sir. That was wonderful. Now we move on to Vandit, sir, for his presentation. So Vandit, sir, is going to highlight the role of physiotherapy in post-COVID-19 patients. He will discuss about different care units, primary care, acute care, and community care. Also, he will tell you about physiotherapy intervention in different phases. So now I'll hand over to Vandit, sir. Sir, please. Yeah, thank you, ma'am. First of all, good evening to everyone. So the topic which I'm going to hit today is introduction of physiotherapy in COVID. How does physiotherapy helps in COVID patients in different phases of their life? So we'll try to cover a numerous number of things. Now, जैसे पहले आप सभी को बता दूं मैं कि फिजियोथेरेपी इज अ वास्ट फील्ड, इतनी चीजें हैं कि इतने कम टाइम में हम उसे कवर नहीं कर पाएंगे। तो मैं चाहता हूं, मैंने कुछ इतने इंपॉर्टेंट टॉपिक्स निकाले हैं जिसके पीछे का रीजन हमें जानना इंपॉर्टेंट है। मेरा आज का जो मोटिव है वो एज अ थेरेपिस्ट अप्रोच नहीं है बल्कि एज अ पेशेंट अप्रोच है। ठीक है, इसको समझिएगा ध्यान से। अगर हम एज अ पेशेंट अप्रोच देखते हैं किसी पेशेंट को तो वो ज्यादा अच्छे से हमें रिकवरी रेट देने में एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। तो ये चीजों को ध्यान में रखते हुए मैं अपना प्रेजेंटेशन आज का चालू करता हूँ। आई एम शेयरिंग माई स्क्रीन, जस्ट लेट मी नो वेदर माई स्क्रीन इज विजिबल और नॉट। Is my screen visible? Yes, sir. Okay, thank you. Okay, so myself Vandit Shah, I'm BPD final year student from Sri Aurobindo Institute of Medical Science, Indore. Now, as we all know, जो कोविड है, देखो जितनी भी रेस्पिरेटरी डिसीजेस होती है वो दो ब्रॉड कैटेगरीज में होती है। वन इज द ऑब्स्ट्रक्टिव, अनदर वन इज द रेस्ट्रिक्टिव, है ना। जो कोविड होता है वो रेस्ट्रिक्टिव के अंदर आता है। अब रेस्ट्रिक्टिव लंग डिसीज का मतलब क्या होता है? रेस्ट्रिक्टिव का मतलब होता है एनी टाइप ऑफ रेस्ट्रिक्शन। तो इस केस में पेशेंट इंस्पायर नहीं कर पाते हैं, पेशेंट इज फेसिंग डिफिकल्टी इन इंस्पायरेशन। वी ऑल नो दैट कि पेशेंट को ऑक्सीजन लेने में दिक्कत जा रही है। क्यों? क्योंकि रेस्ट्रिक्टिव डिसऑर्डर होता है। तो इस रेस्ट्रिक्शन को दूर करने के लिए, पेशेंट्स की हेल्थ को इंप्रूव करने के लिए, उनके लंग्स को ताकतवर बनाने के लिए वी एज अ फिजियोथेरेपिस्ट प्ले अ वेरी क्रूशियल रोल इन द मैनेजमेंट ऑफ कोविड। वी प्ले रोल इन ऑल द 3 फेजेस ऑफ कोविड। वो चाहे आपका अर्ली फेज हो, चाहे आपका एक्यूट फेज हो, चाहे पोस्ट एक्यूट फेज हो, चाहे वो आपका डिस्चार्ज फेज हो, जब आप घर जाने वाले हो। तो पोस्ट कोविड रिकवरी में आपको क्या क्या पीटी ट्रीटमेंट लेना है, क्या क्या एक्सरसाइजेस करनी है, ये सारी चीजें आज मैं कुछ कवर करने वाला हूँ। सो आई एम स्टार्टिंग विद माय लेक्चर।
So specific evidence on COVID. First of all, I would like to talk some general talk on positioning. ठीक है, अब देखिएगा, जैसे कि हम देख पा रहे हैं, या पोजिशनिंग हम लोगों ने सुना है, बहुत सुना है कि आजकल प्रोन पोजिशनिंग बहुत डिमांड में है, हम पेशेंट्स को बोल रहे हैं कि उल्टा लेट जाओ, बट क्या हमने इसके पीछे का रीजन जानने की कोशिश की है कि प्रोन पोजीशन से होता क्या है? हम ये तो बोल देते हैं कि प्रोन पोजीशन से गैस एक्सचेंज अच्छा होता है, ऑक्सीजनेशन अच्छा होता है, बट कैसे होता है, ऐसा बॉडी में क्या हो रहा है, ये चीजों को जानना इंपॉर्टेंट है। अब सबसे इंपॉर्टेंट बात, ये चीजें सिर्फ हमें जानना इंपॉर्टेंट नहीं है, बल्कि ये चीजें हमारे पेशेंट्स को जानना भी उतना ही इंपॉर्टेंट है। तो मैं सभी से एक निवेदन करना चाहता हूं कि आज के बाद हम जो भी पेशेंट्स देख रहे हैं या जो भी पेशेंट्स को हम एडवाइस दे रहे हैं, हमारी एडवाइस सिर्फ ट्रीटमेंट करना नहीं होना चाहिए, हमारी एडवाइस एक साइकोलॉजिकल फ्रेमवर्क पे वर्क करना होना चाहिए। व्हाट इज साइकोलॉजिकल फ्रेमवर्क? कि हम पेशेंट्स को समझाएं कि ये पोजीशन से आपके अंदर क्या चेंजेस हो रही है, आपके लंग्स कैसे रिलैक्स हो रहे हैं। अगर ये चीजें हम पेशेंट को समझाने में सक्षम हो गए तो रिकवरी मिलने से हमें कोई नहीं रोक सकता है, हम लोग 100% ट्रीटमेंट दे सकते हैं। सो मैं चालू करता हूँ पोजीशनिंग के साथ। पोजीशनिंग में हम बोलते हैं कि प्रोन पोजीशनिंग इज द बेस्ट। जो भी पेशेंट्स कोई भी इन्वेसिव वेंटिलेटर पे है, जो पेशेंट्स वेंटिलेटर पे है, जिनको एंडोट्रेकियल ट्यूब्स लगे हुए हैं, जो बायपैप पे है, जिनको ऑक्सीजन मास्क है, ये प्रोन पोजीशनिंग हम किसी भी पेशेंट्स में करवा सकते हैं। अगर आपको दिख रहा है कि किसी पेशेंट की ऑक्सीजन सैचुरेशन 94 के नीचे गिर रहा हो, आप उसको इमीडिएटली प्रोन पोजीशन में ले आइए, उसका ऑक्सीजन लेवल में आपको एनहांसमेंट डेफिनेटली देखने को मिलेगा। तो पहले तो हम ये जानते हैं कि प्रोन पोजीशन ऐसा क्या करता है, ठीक है? बहुत ध्यान से सुनिएगा, बड़ा प्यारा टॉपिक है, बड़ा यूनिक टॉपिक है। प्रोन पोजीशन हमारे लंग्स के मैकेनिकल बिहेवियर को इम्प्रूव करता है। किस तरीके से करता है? बड़ा इजी है, बताऊंगा आपको मैं। ये हमारे गैसियस एक्सचेंज जो लंग्स में होती है, जो ऑक्सीजन हमारे ब्लड में ट्रांसफर होता है और ब्लड से जो कार्बन डाइऑक्साइड हमारे लंग्स में ट्रांसफर होती है, इसको बोलते हैं गैसियस एक्सचेंज। तो ये जो प्रोन पोजीशनिंग होती है, ये हमारे गैसियस एक्सचेंज की एफिशिएंसी को भी बढ़ाती है। इसके अलावा ये जो प्रोन पोजीशन होती है, ये आपकी वेंटिलेटर सपोर्ट को कम करने में हेल्प करती है। धीरे धीरे जो है आपका वेंटिलेटरी सपोर्ट जो है वो कम होना चालू हो जाएगा। आपके सिक्रीशंस जो बन रहे हैं लंग्स के अंदर, वो इससे इंप्रूव होते हैं। आपको सिक्रीशंस क्लियर करने में काफी आसानी जाती है, और ओवरऑल आपके जो हार्ट फंक्शन और आपकी जो ऑक्सीजन डिलीवरी है बॉडी में, वो इंप्रूव होती है। ये सारे इसके एडवांटेज होते हैं। अब चलो मैं ये कह सकता हूँ कि यार ये भी सभी को पता है, काफी नॉर्मल चीजें बोली है मैंने अभी, इसमें अलग क्या बोला है मैंने? ये तो हम सभी को पता है कि हाँ ये सारी चीजें होती है, बट कैसे होती है? तो इसका जो रिसर्च आर्टिकल है जो मैंने पढ़ा था, वो मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहता हूँ। अकॉर्डिंग टू रिसर्च, जब हम प्रोन पोजीशन में लेटते हैं तो हमारा जो इंस्पायरेटरी वॉल्यूम है, एंड इंस्पायरेटरी वॉल्यूम, और साथ ही साथ हमारा जो एंड एक्सपायरेटरी वॉल्यूम है, सांस लेना और सांस छोड़ना, ये दोनों चीजें हमारी इंप्रूव होती है जब हम प्रोन पोजीशन में लेटते हैं। अब वो क्यों? उसका मेन रोल है डायफ्राम। हम सभी जानते हैं कि डायफ्राम इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट मसल इन अवर थोरैसिक रीजन। डायफ्राम के कनेक्शंस हर किसी के साथ है, वो आपके लंबर से अटैच है, वो आपके वर्टिब्रे से अटैच है, वो आपके रिब केस से अटैच है, वो आपकी आगे वाली एब्डोमिनल मसल से अटैच है, उसके मल्टी डायरेक्शनल अटैचमेंट्स है। तो अगर हम डायफ्राम को अच्छे से रिलैक्स कर पाए तो पेशेंट को सांस लेने में दिक्कत बिल्कुल नहीं जाएगी। तो प्रोन पोजीशन में क्या होता है, देखिएगा, समझिएगा। हम जब भी इंस्पायर करते हैं तो डायफ्राम क्या करता है? कॉन्ट्रैक्ट करता है। Whenever you have to inspire, there must be a contraction in the diaphragm muscle. जैसे ही हम प्रोन पोजीशन में लेटते हैं, हमारा डायफ्राम जो है वो थोड़ा सा थिक हो जाता है। एनाटॉमिकली देखा जाए तो वो थोड़ा सा अपने आप को थिक कर लेता है, और थिक का मतलब वो अपने आप को शॉर्ट भी कर लेता है। और शॉर्ट का मतलब क्या हुआ? कॉन्ट्रैक्शन। शॉर्ट का मतलब क्या हुआ? कॉन्ट्रैक्शन। मतलब कि सिंपल वर्ड्स में, whenever you are in prone position, your diaphragm becomes thick and short, it becomes contracted. अब देखिए, प्रोन पोजीशन में आपने डायफ्राम कॉन्ट्रैक्ट करवा दिया है। अब जब पेशेंट प्रोन पोजीशन में सांस लेगा, जब वो इंस्पायर करेगा, तो वापस से कॉन्ट्रैक्शन होना है डायफ्राम में। तो ये जो पहले ही आपने कॉन्ट्रैक्शन करवा दिया था, ये उस वाले कॉन्ट्रैक्शन को हेल्प करेगा। इट विल हेल्प यू टू इंस्पायर मोर इफेक्टिवली। तो ये होता है इसके पीछे का रीजन। तो हमें ये पेशेंट को समझाना पड़ेगा कि आपका इस तरीके से डायफ्राम की एफिशिएंसी बढ़ती है। अगर पेशेंट को ये चीज समझ में आ गई तो उसको ये नहीं लगेगा कि मैं फालतू में तो उल्टा क्यों लेटा हूं, इसके पीछे का रीजन क्या है।
है ना। तो हम पेशेंट को ये समझा दे कि इस तरीके से हमारा डायफ्राम जो है वर्क करता है। ये तो एक पॉइंट था। सेकेंड पॉइंट इज कि पोजिशनिंग हम कर तो रहे हैं प्रोन में, बट एक प्रॉपर पोजिशन में उसको करना जरूरी है। जैसे ये फिगर मैंने डिस्प्ले किया हुआ है, हम कभी भी प्रोन पोजीशन में जब लेटते हैं तो एक पिलो प्लेस करना बहुत इंपॉर्टेंट है। कहाँ पे? हमारे हेड के नीचे। हेड के नीचे एक पिलो को प्लेस करना बहुत ज्यादा जरूरी है। आप चेस्ट के नीचे भी प्लेस कर सकते हो। पिलो प्लेस करने से ये होता है कि जब हम प्रोन पोजीशन में लेटते हैं तो बहुत सारे कॉम्प्लिकेशंस अराइज हो सकते हैं। वो कॉम्प्लिकेशंस क्या है? फर्स्ट वन इज द प्रेशर अल्सर्स। अगर पेशेंट आपका दिन भर प्रोन में लेटा रहेगा तो उसको प्रेशर अल्सर्स बन सकते हैं, प्रेशर सोर्स बन सकते हैं, तो उसका हमको ध्यान देना है। इसलिए हम प्रोन पोजीशनिंग आधे घंटे से लेके 2 घंटे तक ही कराते हैं, इसके बाद नहीं कराते हैं। हमको पोजीशंस को भी आपस में चेंज करना बहुत जरूरी है। तो वो एक प्रॉपर क्राइटेरिया जो होता है पोजीशंस को चेंज करने का, वो कुछ इस प्रकार होता है कि फर्स्ट यू टेक योर पेशेंट इन प्रोन पोजीशन फॉर 2 आवर्स, देन चेंज द पोजीशन टू लेफ्ट साइड लाइन, उसको लेफ्ट साइड लाइन पोजीशन में लेके आ जाओ। लेफ्ट साइड लाइन में 2 घंटे रखने के बाद उसको आप सिटिंग में लेके आ सकते हो। अगर आपका पेशेंट बैठ सकता है तो आप उसको इंक्लाइंड सिटिंग में बैठा सकते हो। इंक्लाइंड सिटिंग में आप बेड को एलिवेट कर सकते हो 45 से लेके 60 डिग्री तक। मैंने इसके लिए भी एक इमेज इसमें डिस्प्ले की हुई है। ठीक है, हम बेड को 60 डिग्री तक एलिवेट कर सकते हैं एज पर द कॉन्शियसनेस ऑफ पेशेंट। ये देख के कि हमारा पेशेंट कितना कॉन्शियस है। ठीक है, सिटिंग के बाद जो अगली पोजीशन है हमारी वो होगी टर्निंग टुवर्ड्स द राइट साइड। ठीक है, पहले हमने लेफ्ट साइड में साइड लाइन कराया था, अब हम राइट साइड में साइड लाइन कराएंगे, एंड देन अगेन वी विल रिटर्न टुवर्ड्स द प्रोन पोजीशन। तो ये एक पूरी साइकिल है। दिस इज द होल साइकिल ऑफ पोजीशनिंग। सबसे पहले प्रोन, फिर लेफ्ट साइड लाइन, फिर सिटिंग, फिर राइट साइड लाइन, एंड देन लास्ट वन इज अगेन प्रोन। इस पूरी प्रोसीजर में सुपाइन लाइन है ही नहीं, क्योंकि जब पेशेंट वेंटिलेटर पे है हम नहीं चाहते हैं कि पेशेंट सुपाइन में रहे। अब आप लोगों के मन में सवाल आ रहा होगा कि यार प्रोन में तो इतनी चीजें अच्छी हो रही है, तो ऐसा सुपाइन में क्या है? सुपाइन में अगर हम लेटे हैं तो ऐसा क्या हो रहा है बॉडी में कि हमारे लंग्स प्रॉपर तरीके से वेंटिलेट नहीं हो पा रहे? तो वो ये हो रहा है, जब भी हम सुपाइन में होते हैं तो हमारा जो पीछे वाला हिस्सा होता है चेस्ट का, वो ग्राउंड रिएक्शन फोर्स के कांटेक्ट में होता है, वो बेड के कांटेक्ट में होता है। तो बेड क्या करता है? नीचे से काउंटर एक प्रेशर लगाता है। बेड क्या करता है? ऊपर की तरफ एक प्रेशर लगाता है। उस प्रेशर से क्या होता है, जो हमारे पोस्टीरियर एल्वुलस होते हैं, एल्वुलाई जो होते हैं हमारे लंग्स में, वो चारों तरफ फैले हुए हैं, आगे है, पीछे है, हर जगह फैले हुए हैं। तो जो हमारे नीचे वाले एल्वुलाई होते हैं जो बेड के कांटेक्ट में है, वो एल्वुलाई प्रॉपर तरीके से वेंटिलेट नहीं हो पाते हैं, वो कोलैप्स होना चालू हो जाते हैं, जैसे कि हम इस इमेज में देख पा रहे हैं। ठीक है, कि नीचे वाले एल्वुलस जो है वो कोलैप्स होना चालू हो गए हैं सुपाइन में। और इसके अपोजिशन में जो ऊपर वाले एल्वुलाई है, ऊपर टॉप रीजन में, वो ओवर डिस्टेंडेड हो गए हैं। ओवर डिस्टेंडेड का मतलब क्या होता है? उनमें जितनी हवा चाहिए थी उससे ज्यादा हवा भर चुकी है। ओवर डिस्टेंडेड का मतलब होता है कि बहुत ज्यादा वो भर गए, हमको इतना नहीं भराना है एल्वुलस को। तो ये दो सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है सुपाइन लाइन में, कि जो वेंट्रल एल्वुलस होते हैं ऊपर के वो ओवर डिस्टेंडेड हो जाते हैं, और नीचे वाले जो होते हैं वो कोलैप्स होना चालू हो जाते हैं। बट जब हम पेशेंट को प्रोन में रखते हैं तो प्रोन में क्या होता है, पूरी चीजें रिवर्स हो जाती है। अब जो ऊपर वाले हमारे एल्वुलस है, डॉर्सल एल्वुलस, उसका कोलैप्स भी कम हो गया क्योंकि उस पर कोई ग्राउंड रिएक्शन फोर्स नहीं आ रहा है। और जो नीचे वाले एल्वुलस हमारे हैं, वेंट्रल एल्वुलाई, वो इतने ज्यादा ओवर डिस्टेंडेड भी हो नहीं पा रहे हैं क्योंकि हम प्रोन पोजीशन में लेटे हुए हैं। और हमने नीचे टॉवेल इसलिए प्लेस किए चेस्ट के नीचे, जिससे कि एक एबनॉर्मल प्रेशर ना लगे हमारे चेस्ट पे, प्रेशर सोर्स ना बन जाए हमारे चेस्ट पे, इसको ध्यान रखते हुए। अब जो एक टॉवेल हमने रखी है वो उसके हेड के नीचे रखी है प्रोन में। हेड के नीचे टॉवेल रखने का रीजन ये होता है कि जब हम प्रोन पोजीशन में लेटते हैं, देयर इज अनदर कॉम्प्लिकेशन कॉल्ड एज फेशियल इडिमा। पेशेंट को फेशियल इडिमा हो सकता है, स्वेलिंग हो सकती है उसके फेस में। तो हम नहीं चाहते कि उसके फेस पे किसी प्रकार की स्वेलिंग हो। सो इन ऑर्डर टू डिक्रीज दैट स्वेलिंग, विल कीप अ टॉवेल रोल और अ पिलो बीनीथ हिज हेड।
ठीक है, ये चीजें हमें ध्यान रखना बहुत जरूरी है। साथ में अगर पेशेंट को एंडोट्रेकियल इंट्यूबेशन है या गैस्ट्रिक ट्यूब लगी हुई है तो उसमें कंप्रेशन नहीं आना चाहिए, है ना, उस पर एबनॉर्मल कंप्रेशन नहीं आना चाहिए। तो उसी के लिए हमने ये टावल प्लेस की है जिससे कि एक स्पेस मिल जाए वो ट्यूब्स को वहां पे रहने के लिए, और एबनॉर्मल प्रेशर से आपकी ट्यूब्स जो है वो डिसलोकेट ना हो जाए। तो ये कुछ रीजंस थे पोजिशनिंग के। इस तरीके से हम पोजिशनिंग में ध्यान देते हैं। ठीक है, तो मैंने आपको पोजिशनिंग में सारी इंपॉर्टेंट चीजें जो मुझे लगती है वो मैंने अभी तक कवर की है। ठीक है, और पोजिशनिंग में आप देखो ये इमेज में मैंने क्लियर कट बताया है, जो पेशेंट की जो हैंड पोजीशन है वो देखो कुछ इस प्रकार है, 90 डिग्री एल्बो फ्लेक्स्ड, है ना, और अबडक्टेड, 90 डिग्री अबडक्टेड एंड 90 डिग्री एल्बो फ्लेक्स। इस तरीके से हमको हाथ को रखना है जिससे कि और एक कॉम्प्लिकेशन होने से हम बच सकते हैं, और वो कॉम्प्लिकेशन है ब्रेकियल प्लेक्सस को इंजुरी हो जाना। प्रोन पोजीशन में कभी कभी चांसेस होती है कि हमारा जो ब्रेकियल प्लेक्सस है उस पर एबनॉर्मल कंप्रेशन पड़ जाए, है ना, तो हम नहीं चाहते कि ब्रेकियल प्लेक्सस पे कंप्रेशन पड़े, तो उसके लिए हमको हैंड पोजीशन इस तरफ से रखना पड़ती है, इस साइड से, मतलब 90 डिग्री अबडक्ट कर लो और एल्बो को 90 डिग्री फ्लेक्स कर लो और पेशेंट को उल्टा लेटने के लिए बोल दीजिए। तो हम तीनों कॉम्प्लिकेशन से बच सकते हैं, फेशियल इडिमा नहीं होगा, ब्रेकियल प्लेक्सस इंजुरी भी नहीं होगी, और पेशेंट्स को प्रेशर अल्सर्स भी बनने का खतरा नहीं होगा। सो दिस वाज ऑल अबाउट पोजीशनिंग। अब नेक्स्ट आर्टिकल पे जाने से पहले मैं एक बार कंफर्म करना चाहता हूँ कि क्या मेरी आवाज और स्क्रीन सभी को क्लियर है? यस सर। ओके फाइन। देखिए जो पेशेंट आपके खड़े हो सकते हैं, जिनमें कॉन्शियसनेस लेवल अच्छी है, उनके लिए स्टैंडिंग बेड्स भी आते हैं। ठीक है, स्टैंडिंग बेड्स आई डोंट थिंक कि इंडिया में इतने कॉमन है, बट जो हाईटेक हॉस्पिटल्स होते हैं मुंबई वगैरह में भी, जो बड़े बड़े हॉस्पिटल है, फोर्टिस हॉस्पिटल है ना, और टाटा बिरला हॉस्पिटल है, तो इन हॉस्पिटल में आई थिंक ये बेड्स अवेलेबल है, स्टैंडिंग बेड जो पूरी तरीके से खड़े हो जाते हैं। तो आप पेशेंट्स को इस बेड के थ्रू खड़ा भी कर सकते हो। ठीक है, अगर मैं सिंपल वर्ड में बोलना चाहूँ तो टिल्ट टेबल, जो फिजियोथेरेपी में टिल्ट टेबल होती है, ये बिल्कुल टिल्ट टेबल का एक रोल प्ले करता है। ठीक है, तो इससे आप बहुत सारे कॉम्प्लिकेशन होने से अपने आप को बचा सकते हो। तो ये सारी चीजें थी आपके पोजिशनिंग के अंदर। अब मैं सेकेंड टॉपिक लेना कवर करना चाह, पोजिशनिंग में और भी बहुत सारी चीजें हैं, बट ड्यू टू टाइम लैप्स हम थोड़ा सा शॉर्ट में जो इंपॉर्टेंट चीजें है वो हिट करना ज्यादा मैं प्रेफर करता हूँ। ठीक है, जो सारे पॉइंट्स है वो हम सभी लोगों को समझ जाए, ये मेरा मोटिव है। Yeah, the second one is the respiratory exercises. Respiratory exercises में एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट हमें ध्यान रखना है। देखिए हम सभी को पता है कि क्या क्या एक्सरसाइजेस हम करा सकते हैं, सभी को पता है, इसमें कुछ भी नया नहीं है, बट हमें ये नहीं पता है कि ये एक्सरसाइजेस कब नहीं कराना होती है। When are these exercises contraindicated, ये हमें नहीं पता है। तो हमें पहले बात तो ये होना चाहिए कि जो हमारा कोविड होता है वो पर्टिकुलर फेजेस में बटा हुआ है, अर्ली फेज, एक्यूट फेज, पोस्ट एक्यूट फेज, और लास्ट में आपका डिस्चार्ज फेज। अर्ली फेज का मतलब क्या होता है कि जब आपके सिम्टम्स आना चालू हुए हैं बट आपको कोई भी रेस्पिरेटरी सिम्टम नहीं आ रहा है, आपको सांस लेने में दिक्कत नहीं हो रही है, आपको सिर्फ हल्का सा बुखार है, हल्की सी कफ है, तो वो होता है अर्ली फेज। तो अर्ली फेज में आप कभी भी पेशेंट को नॉर्मल एक्सरसाइज कराएं। नॉर्मल का मतलब क्या होता है, उनको ब्रिस्क वॉकिंग करने के लिए बोलिए। ब्रिस्क वॉकिंग का मतलब क्या होता है, जो वॉकिंग स्लो भी नहीं होती है और जो जॉगिंग भी नहीं होती है, मतलब कि ब्रिस्क वॉकिंग इज इन बिटवीन योर जॉगिंग एंड योर स्लो वॉकिंग, है ना, स्लो वॉकिंग और जॉगिंग के बीच का होता है ये, मतलब थोड़ा तेजी से चलना, थोड़ा तेज चलना, इसको बोलते हैं ब्रिस्क वॉकिंग। तो हम ये एडवाइस पेशेंट को दे सकते हैं अर्ली फेज में कि आप ब्रिस्क वॉकिंग करो, आप आपके लिम्स को एक्टिवेट रखो, आप थेरापेटिक की तो सारी स्ट्रेंथनिंग एक्सरसाइजेस करो। स्ट्रेंथनिंग में खास करके आप ध्यान दो थोरैसिक एक्सपांशन में, जितनी भी आपकी थोरैसिक एक्सपांशन एक्सरसाइजेस होती है जिसमें आपकी थोरैसिक कैविटी एनलार्ज होती है, हमें वो कराना होती है। ठीक है, और एक्सरसाइजेस में सबसे इंपॉर्टेंट टिप क्या होती है कि जब भी आप ब्रीदिंग करवा रहे हो पेशेंट्स को, तो ब्रीदिंग के टाइम पे आपके जो चेस्ट होते हैं दे शुड बी ऑलवेज इन अ रिट्रैक्टेड पोजीशन, वो बिल्कुल टाइट पीछे की तरफ सोल्जर्स की तरह होना चाहिए हमारे चेस्ट, क्योंकि जब हम हमारे चेस्ट को रिट्रैक्टेड रखते हैं तो हमारा थोरैसिक कैविटी जो है वो एनलार्ज हो जाता है, तो जो ऑक्सीजनेशन होता है, जो हवा होती है, उसको ज्यादा स्पेस मिलती है वेंटिलेट होने के लिए। ठीक है, तो ये चीज हमें ध्यान देनी है, जब भी हम डीप ब्रीदिंग करवाते हैं तो जो शोल्डर है हमारे वो हमेशा रिट्रैक्टेड होना चाहिए। ये एक टिप थी रेस्पिरेटरी एक्सरसाइजेस के अंदर। इसके अलावा जब भी आपका पेशेंट ब्रेथलेसनेस फील करे,
या मेडिकल टर्म्स में बोलूं तो डिस्निया, डिफिकल्टी इन ब्रीदिंग। जब भी आपके पेशेंट को डिफिकल्टी हो रही है ब्रीदिंग करने में, आप उन्हें कुछ पोजीशंस बता सकते हो जिसमें कि उनको सांस लेने में आसानी जाएगी। वो पोजीशंस क्या होती है? अगर पेशेंट खड़ा हो सकता है तो हम उसको बोलते हैं कि खड़े होके आप किसी भी टेबल पे हल्का सा लीन कर जाइए आगे की तरफ, हल्का सा लीन हो जाओ आगे की तरफ। लीन होने से क्या होता है, हमारा जो डायफ्राम होता है वो थोड़ा सा रिलैक्स हो जाता है। डायफ्राम के ऊपर एब्नॉर्मल लोड नहीं पड़ता है। हमारा जो पेल्विक फ्लोर मसल्स होती है वो थोड़ी सी रिलैक्स हो जाती है ना। तो इतनी सब बॉडी में जब चीजें रिलैक्स हो जाएगी तो पेशेंट को सांस लेने में आसानी जाएगी। तो आप पहला क्या पेशेंट को एडवाइस दे सकते हो कि अगर आप खड़े हो सकते हो तो खड़े होके हल्का सा आगे की तरफ लीन हो जाओ। अगर आप खड़े नहीं हो सकते हो तो भी ठीक है, हमारे पास और एक अच्छा ऑप्शन है, और वो ऑप्शन ये है कि आप बैठ के हल्के से टेबल पे आगे पिलोस को रख के ऐसा लीन हो जाओ आगे की तरफ, लाइक दिस वे। ठीक है, पिलोस जैसे हम स्कूल में बच्चे कैसे सोते हैं, जब लेक्चर चल रहा होता है स्कूल में तो बच्चे सो नहीं जाते हैं टेबल पे हेड डाउन करके, बिल्कुल वो पोजीशन। ठीक है, तो उससे भी आपको सांस लेने में आसानी जाएगी, क्योंकि आपकी बॉडी की जो पेल्विक फ्लोर मसल्स है, आपका जो डायफ्राम है, ये सब रिलैक्स हो जाता है। ठीक है, उस पर स्ट्रेस नहीं पड़ता है। ये हमारे एडवाइस थी, ये 2 एडवाइस हम पेशेंट्स को दे सकते हैं। डायफ्रामेटिक ब्रीदिंग, सभी लोगों ने सुना है क्या होती है डायफ्रामेटिक ब्रीदिंग, पर फिर भी हम समझ नहीं पाते कि एक्चुअली ये क्या होती है, इसको कैसे करवाया जाता है। तो डायफ्रामेटिक ब्रीदिंग बड़ी सिंपल होती है। जो आपका डोमिनेंट हैंड होता है उसको हम बोलते हैं पेशेंट को कि एब्डोमिनल पे रखो, और जो नॉन डोमिनेंट हैंड होता है उसको बोलते हैं चेस्ट पे रखो। जब भी पेशेंट इंस्पायर करेगा, जब भी वो हवा को अंदर लेगा, तो आपका जो एब्डोमेन है वो बाहर की तरफ बल्ज करना चाहिए। ऑलवेज रिमेंबर, ड्यूरिंग इंस्पायरेशन योर एब्डोमेन शुड ऑलवेज बल्ज आउट, एंड ड्यूरिंग एक्सपायरेशन, सांस को छोड़ते वक्त आपका टमी जो है वो हमेशा अंदर की तरफ कॉन्ट्रैक्ट होना चाहिए। ये होती है डायफ्रामेटिक ब्रीदिंग। वापस एक बार बोलता हूं मैं, जब भी आप सांस लोगे आपका एब्डोमेन बाहर जाना चाहिए, है ना, तो ही वो डायफ्रामेटिक ब्रीदिंग कहलाती है। इसका मतलब कि आप आपके डायफ्राम मसल को यूज कर रहे हो ब्रीदिंग करने के लिए, आप आपके नेक मसल्स का सहारा नहीं ले रहे हो। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, क्योंकि जो लोग डायफ्रामेटिक ब्रीदिंग नहीं करते हैं उनमें सांस लेने में उनको दिक्कत होती है। क्यों? क्योंकि उस केस में एक्सेसरी मसल्स आपकी ब्रीदिंग करवाती है, ना कि डायफ्राम। आपकी जो ट्रेपेजियस है, आपकी जो लिवेटर स्कैपुली मसल्स है, ये सब ब्रीदिंग करवा रही है। तो आपको ऑब्वियस सी बात है कि पेशेंट को दिक्कत होगी, है ना। तो ये चीजें पे हमको ध्यान देना है कि व्हाइल ब्रीदिंग इन योर एब्डोमेन शुड गो आउट, एंड व्हाइल ब्रीदिंग आउट योर एब्डोमेन शुड गो इन। ये चीजें हमेशा याद रखना। तो ये होती है डायफ्रामेटिक ब्रीदिंग। अब ये आपकी रेस्पिरेटरी एक्सरसाइज तो हो गई। अब इसके बाद हम कैट एंड कैमल एक्सरसाइज जो हमारे फिजियोथेरेपी में होती है, बड़ी प्यारी सी एक्सरसाइज होती है कैट एंड कैमल। एक पोस्चर में कैमल बनता है और एक पोस्चर में कैट बनती है, कैट के जैसा हम बनता है ना। तो कैट एंड कैमल जब भी हम पेशेंट्स को करवाते हैं तो ये बड़ी प्यारी एक्सरसाइज है हमारे ब्रीदिंग को इम्प्रूव करने के लिए। ठीक है, एज कंपेयर टू ऑल दी अदर एक्सरसाइजेस, कैट एंड कैमल इज द बेस्ट वन। मुझे ये बेस्ट लगती है और रिसर्चर्स को भी ये बेस्ट लगती है। जिन लोगों ने रिसर्च की है इसके ऊपर उनको भी ये बेस्ट लगती है। अगर पेशेंट आपका कैट एंड कैमल कर पा रहा है, इट्स वेल एंड गुड, इससे उसकी ब्रीदिंग एफिशिएंसी काफी हद तक बढ़ेगी। ठीक है, तो ये याद रखिएगा। ये थी हमारी रेस्पिरेटरी एक्सरसाइज के बारे में। तो अभी तक हम 2 टॉपिक्स को टच कर चुके हैं, और वो थे हमारी पोजिशनिंग और हमारी रेस्पिरेटरी एक्सरसाइजेस। थर्ड चीज पे जाने से पहले एक बार वापस से मैं कंफर्म करना चाहता हूँ कि am I audible and am I visible clearly to everyone? Yes, sir. You are audible. Okay, fine. Third technique is the most important one, और मैं चाहता हूँ कि सबसे ज्यादा ध्यान में इसी टेक्निक पे दूं, और उसे बोलते हैं ACPT। मैं कुछ भी डिस्प्ले नहीं कर रहा हूँ, मैं टोटल आप लोगों को बस समझाने की कोशिश करूंगा। ठीक है, कि ACPT क्या होती है। See, first of all, ACPT stands for Active Cycle of Breathing टेक्निक। एक्टिव का मतलब क्या होता है कि पेशेंट इसको खुद से कर पाता है, किसी की हेल्प नहीं लगती है उसे। तो ये तो बहुत बड़ा एडवांटेज हुआ हमारे लिए कि पेशेंट इसको खुद से कर पा रहा है। अब एसीबीटी में होता क्या है पे जाने से पहले आप ये समझना कि एसीबीटी हम हर एक पेशेंट को करवा सकते हैं, चाहे वो आपके बेड रिडन हो, आपके ऑक्सीजन मास्क पे हो। पर आप मतलब ऑक्सीजन मास्क को थोड़ी देर के लिए आप निकाल सकते हो अगर पेशेंट स्टेबल है तो। अगर वो स्टेबल नहीं है तो बिल्कुल रिमूव नहीं करना। ये चीज पे हमको ध्यान देना पड़ेगा। ठीक है, ये सारी टेक्निक्स हमको उसका ऑक्सीजन सैचुरेशन देख के करना पड़ती है। अगर उसका ऑक्सीजन बहुत ज्यादा ड्रॉप हो रहा है, आप एसीबीटी नहीं कराओगे।
ठीक है, क्योंकि एसीबीटी टेक्निक जो होती है इट इज बेसिकली फॉर रिमूविंग योर सिक्रीशंस इन द लंग्स। हमारे लंग्स में जितने भी सिक्रीशंस बन रहे हैं, जो कि बनने ही वाले हैं, क्योंकि निमोनिया होता है, कोविड इज व्हाट, कोविड इज निमोनिया, एंड निमोनिया देयर इज एक्सेसिव फ्लूइड बिल्डअप इन द लंग्स। उस फ्लूइड को निकालना बहुत जरूरी है। जैसे हम उस फ्लूइड को निकालेंगे, पेशेंट्स की जो सांस लेने की क्षमता है वो अपने आप बढ़ जाएगी, हमको कुछ नहीं करना पड़ेगा। तो जो ये सिक्रीशंस को निकालने की टेक्निक होती है, एक्टिव टेक्निक होती है, उसी को एसीबीटी बोलते हैं। अब एसीबीटी में 3 फेजेस होते हैं, ध्यान से सुनना, बहुत ध्यान से। वो 3 फेजेस क्या होते हैं? पहला फेज होता है एसीबीटी में आपकी ब्रीदिंग कंट्रोल। ब्रीदिंग कंट्रोल क्या होता है मैं बताऊंगा थोड़ी देर से। सेकेंड फेज होता है आपके सिक्रीशंस को लूज करना, टू लूज योर सिक्रीशंस, क्योंकि सिक्रीशंस जो होते हैं ना ये बड़े अकड़ वाले होते हैं, इनमें इतना एटीट्यूड होता है कि ये आपके एल्वियोलस को पकड़ के रखे हुए, इस तरीके से बिल्कुल टाइट जकड़ के रखे हुए हैं, तो ये बड़े ढीठ होते हैं, इनमें अकड़ बहुत होती है, तो इनकी अकड़ को निकालना पड़ता है। मतलब अगर मैं मेडिकल टर्म से बोलूं तो इनको लूज करना पड़ता है। तो सेकंड फेज जो होता है एसीबीटी का वो होता है सिक्रीशंस को लूज करना, ठीक है, ढीला करना। और थर्ड फेज, अब एक बार आपके सिक्रीशंस ढीले हो गए, अब आपका कंट्रोल पूरा उसके ऊपर है, अब वो उनमें एटीट्यूड नहीं बच गया, अब आप डोमिनेंस बन गए हो। तो थर्ड फेज होता है फोर्स एक्सपायरेटरी फेज। इस फेज में आप कुछ ऐसा करते हो जिससे कि वो पूरे ढीले हो रखे जो आपके स्प्यूटम है, जो आपके सिक्रीशंस है, वो आपके लंग्स से बाहर निकल जाते हैं, जिसको आप थूक करके अलग कर सकते हो, ठीक है। तो ये होती है 3 फेजेस, ब्रीदिंग कंट्रोल, देन लूज योर सिक्रीशंस एंड एक्सपायरेट द सिक्रीशंस। अब इसको करना कैसे होता है? ब्रीदिंग कंट्रोल बड़ा इजी है। ब्रीदिंग कंट्रोल का मतलब होता है कि आपको कोई भी लंबी सांस नहीं लेना है या कोई भी लंबी सांस नहीं छोड़ना है। ब्रीदिंग कंट्रोल का मतलब होता है आप नॉर्मल अमाउंट में सांस लो, नॉर्मल अमाउंट में सांस को छोड़ो। आप एक अच्छी एडवाइस देता हूं मैं कि जब आप पेशेंट को ब्रीदिंग कंट्रोल करवा रहे हो, आप उनको एडवाइस दो कि पेशेंट आप आपकी आंख बंद कर लो, आप आपके शोल्डर को पूरा रिलैक्स रखो, पूरी बॉडी को काम करो थोड़ी देर के लिए। मैं ये बोलना चाहता हूँ कि आप फिजियोथेरेपिस्ट मत बनो, आप जितना हो सके एक मेडिटेशन स्पेशलिस्ट बन जाओ थोड़ी देर के लिए। यही तो यूनिकिविटी है, ये तो क्रिएटिविटी है कि आप थोड़ी देर के लिए आपका कैरेक्टर चेंज कर लो, आप मेडिटेशन स्पेशलिस्ट बन जाओ। पेशेंट्स को ऐसे कमांड्स दो, कीप योर शोल्डर रिलैक्स, क्लोज योर आईज, बी काम, कोई स्ट्रेस नहीं लेना है, कोई स्ट्रेस नहीं है। ये जो कमांड्स होते हैं एक सॉफ्ट वे में, ये हमको पेशेंट्स को देना है। तो ब्रीदिंग कंट्रोल से क्या होता है, जब पेशेंट आराम से सांस लेगा और आराम से सांस छोड़ेगा तो उसकी बॉडी जो है वो ओवरऑल रिलैक्स हो जाएगी, उसको किसी प्रकार का स्ट्रेस नहीं होगा। जो पेशेंट फटीग होते हैं, जिनमें फटीगनेस होती है, वो फटीगनेस नहीं आएगी। कुछ कुछ पेशेंट डरते हैं ये टेक्निक करने से, तो उनका डर नहीं आएगा, है ना, वो डर से कोप अप करना सीख जाएंगे अगर आप इतने अच्छे कमांड्स देते हो। तो थोड़ी देर के लिए डोंट बी अ फिजियोथेरेपिस्ट, बी अ मेडिटेशन स्पेशलिस्ट, थोड़ी देर के लिए सिर्फ इस स्पेस के लिए, है ना, ब्रीदिंग कंट्रोल के लिए। अब ब्रीदिंग कंट्रोल आई होप सभी लोग समझ गए हो कि बस सिंपल सांस लेनी है धीरे धीरे और सिंपल सी सांस छोड़नी है धीरे धीरे, ठीक है। ये होती है आपकी ब्रीदिंग कंट्रोल। कोई भी टेंशन हमें नहीं लेना है, आईज को बंद करके ये करना है। एक बार ब्रीदिंग कंट्रोल आपने कर लिया, फिर सेकेंड फेज आती है आपकी डीप ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस या फिर थोरेसिक एक्सपांशन एक्सरसाइजेस। अब डीप ब्रीदिंग में क्या होगा, मैंने आपको सेकेंड फेज क्या बताई थी कि सिक्रीशंस जो टाइट पकड़ के रखे हुए एल्वियोलस में, उसको हमको लूज करना है। तो उसी सिक्रीशंस को लूज करने के लिए ये होती है DBX, डीप ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस। अब इसमें आपको कमांड क्या देना है पेशेंट्स को कि शोल्डर को रिलैक्स रखो, टेक अ लॉन्ग स्लो डीप ब्रेथ इन, एक लंबी सांस खींचो अंदर, धीरे धीरे खींचो, काय से, नाक से। बट कुछ कुछ पेशेंट्स स्टिफ नोज के कारण नाक से नहीं खींच पाते हैं, तो उन पेशेंट्स में आप बोल सकते हो कि मुंह से ले सकते हो, आप सांस को अंदर मुंह से भी खींच सकते हो, बट यू शुड ऑलवेज अवॉइड माउथ ब्रीथिंग, ठीक है। बट ये सिर्फ उन्हीं पेशेंट्स में कराओ जो कि नाक से नहीं ले पा रहे हैं, तो इनमें आपके पास कोई ऑप्शन नहीं बचा, तो उन पेशेंट्स में आप माउथ के थ्रू करवा सकते हो, ठीक है। सो यू विल टेल द पेशेंट टू टेक अ लॉन्ग डीप स्लो ब्रेथ इन, धीरे धीरे सांस को लंबा खींचो और रोक के रखो, 2 से 3 से 5 सेकंड तक उसको रोक के रखो, और इस चीज को हम बोलते हैं इंस्पायरेटरी होल्ड। आप इसके पीछे का रीजन जानो कि क्या होता है, इंस्पायरेटरी होल्ड क्यों कराना है हमें पेशेंट्स को, क्योंकि इंस्पायरेटरी होल्ड जब आप सांस को रोकने के लिए बोलते हो पेशेंट्स को, तो आपकी जो एयर आपने अंदर ली है उसको टाइम मिलता है कि वो आपके हर एक एल्वियोलस में जाके हर एक कोने कोने में छुपे कीटाणुओं को,
इस केस में कीटाणु क्या है? सिक्रीशन। एडवर्टाइज नहीं आती है टीवी में कि ये आपका वो है फिनाइल जो कोने कोने में छुपे हुए कॉकरोच उसको ढूंढ के निकाले, तो ये उसी तरीके से कुछ चीज होती है कि जब भी आप इंस्पायरेटरी होल्ड करते हो तो आपकी जो एयर होती है वो कोने कोने में जाके आपके एक एक सिक्रीशंस को लूज करने में हेल्प करती है। तो इसको इस चीज से याद रखिएगा। ये सारी पेशेंट, हाँ ये सारी चीजें पेशेंट को अगर समझाएंगे ना तो बहुत इफेक्टिव रिजल्ट मिलेंगे। मार्क माय वर्ड्स, ये सारी चीजें इसी लैंग्वेज में, बिल्कुल सिंपल लैंग्वेज में पेशेंट को समझाओ इसी फॉर्म में कि ये कोने में छुपे छुपे आपके सिक्रीशंस को निकालने में हेल्प करेगा, है ना। तो पेशेंट को मजा आएगा, उसके चेहरे पे एक स्माइल आ जाएगी और यही आपको चाहिए है। आपकी टेक्निक इससे इफेक्टिव बनेगी, ठीक है। तो इस तरीके से जब हम डीप ब्रीथिंग एक्सरसाइज कराते हैं तो पेशेंट के जो पूरे सिक्रीशंस होते हैं वो लूज हो जाते हैं। अब इंस्पायरेटरी होल्ड भी आपने करा दिया। अब इंस्पायरेटरी होल्ड करने के बाद आपको पेशेंट को क्या बोलना है कि आप सांस जो आपने अंदर ली थी उसको आप धीरे धीरे छोड़ो। कमांड क्या रहेगा? धीरे धीरे छोड़ो, फोर्स नहीं करना है, क्योंकि फोर्स करने के लिए हमारे पास थर्ड फेज अभी बची हुई है, तो हम सेकंड फेज में फोर्स नहीं कराएंगे। डोंट फोर्स द पेशेंट टू ब्रीथ आउट, उसको बोलो कि आराम से छोड़ो पूरी सांस को, ठीक है। लंबी सांस लो, रोको 5 सेकंड, उसको धीरे धीरे छोड़ो। तो इससे क्या होगा, उसके पूरे सिक्रीशंस जो है वो लूज हो जाएंगे। अब एक बार हमारे सिक्रीशंस लूज हो गए तो अब हम बढ़ सकते हैं थर्ड फेज में। थर्ड फेज में बढ़ने से पहले एक इंपॉर्टेंट टिप देना चाहता हूँ कि अगर सेकंड फेज में पेशेंट को कोई भी डिफिकल्टी होती है, हो सकता है इसको चक्कर आए, लाइट हेडीनेस हो, उसको चक्कर जैसा लगे, है ना, सिर घूमे उसका, तो हम वापस से फेज 1 में रिटर्न करना पड़ेगा। हमको वापस से उसको ब्रीदिंग कंट्रोल कराना पड़ेगा, ठीक है। तो आप सेकंड फेज के बाद अगर पेशेंट को ये सिम्टम आते हैं सो यू शुड ऑलवेज रिवर्स टू फेज 1 ऑफ ब्रीदिंग कंट्रोल। जैसे आप ब्रीदिंग कंट्रोल कराओगे पेशेंट आपका वापस से रिलैक्स हो जाएगा, फिर आप वापस से सेकंड फेज कराओ, ठीक है। उसके बाद ही थर्ड फेज में बढ़ना। थर्ड फेज में बढ़ने के लिए कुछ क्राइटेरिया होता है और वो क्राइटेरिया यही है। माय मीटिंग इज ऑन ना? या Yes, sir. मीटिंग खत्म हो जाएगी तो मुझे एक्चुअली पता नहीं चल पाएगा क्योंकि मेरी स्क्रीन दिख रही है ना, इसलिए मैं बता रहा था। हाँ, तो ये हमारे चीजें हमको ध्यान रखना पड़ेगी। फिर हम आते हैं थर्ड फेज में, और थर्ड फेज होता है हफिंग फेज या फोर्स्ड एक्सपायरेटरी टेक्निक। अब देखिए इसमें क्या करना है, जो भी सिक्रीशंस हम लूज कर चुके हैं, अब बारी आती है कि सिक्रीशंस को हमारे अंदर से बाहर निकाला जाए। तो बाहर निकालने के लिए हमको ज्यादा प्रेशर चाहिए, तो वही ज्यादा प्रेशर को आप क्या बोलते हो? फोर्स्ड एक्सपायरेटरी प्रेशर या फिर हफिंग। हफिंग का मतलब क्या होता है, देखो जो मैं करके बता रहा हूँ, ये होती है हफिंग। जैसे कि हम एक मिरर पे नहीं बनाते हैं, हम मिरर पे एक हमारे फॉग बनाते हैं, बचपन में बहुत करा करते थे, उस टाइप से हफिंग की जाती है। हफिंग भी 2 तरीके की होती है, एक होती है मीडियम हफ, एक होता है लॉन्ग हफ। मीडियम हफ का मतलब क्या होता है कि इसमें आप एकदम से फोर्स नहीं करते हो, आप धीरे धीरे सांस छोड़ते हो एकदम से। मतलब देखो इस तरीके से, वंदिश सर समझ पा रहे हो? ये जो आवाज है ये आना चाहिए। आप एक लॉन्ग ब्रेथ को छोड़ रहे हो हफ के फॉर्म में, तो ये कहलाता है मीडियम हफ। मीडियम हफ से क्या होता है, जो आपके दूर छुपे हुए सिक्रीशन से, जो आपके लंग्स के बेस पे है, जो आपके स्मॉलर एयरवेज में सिक्रीशन है, वो इससे निकलना चालू हो जाते हैं, वो ऊपर की तरफ आना चालू हो जाते हैं। एक बार ऊपर की तरफ आ गए फिर आप करवाओ लॉन्ग हफ। लॉन्ग हफ का मतलब क्या होता है, इस तरीके से एकदम से पूरी सांस को बाहर छोड़ना, ये होता है लॉन्ग हफ। तो लॉन्ग हफ से क्या होगा, जो सिक्रीशंस आपके लार्जर एयरवेज में आ चुके थे वो अब बाहर निकल जाएंगे, वो थूक बन के आपके बाहर निकल जाएंगे। तो ये दोनों हफ कराना है, मीडियम हफ और मीडियम हफ के बाद लॉन्ग हफ। और जब भी आप हफिंग कराते हो पेशेंट्स को यहाँ पे क्रैकल्स फील होते हैं। क्रैकल्स का मतलब क्या होता है, खड़ 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 ऐसी आवाज आती है, क्रैकल्स बबल्स टाइप की आवाज आती है। तो वो आवाज आना जरूरी है। वो आवाज आने का मतलब ये होता है कि आपकी ब्रीदिंग टेक्निक सफिशिएंट है, आप सिक्रीशंस को मूव करवा रहे हो, क्योंकि वो सिक्रीशंस की आवाज होती है। वो जो क्रैकल साउंड होते हैं वो आपके सिक्रीशंस की आवाज होती है। तो ये आवाज आना पेशेंट को जरूरी है, वो इस आवाज को फील कर सकता है खुद हाथ रख के, ठीक है। तो ये फीडबैक का काम करता है। तो इस तरीके से हम लोग हफिंग कराते हैं। अब और एक एडवाइस देना चाहता हूँ कि यस, एक्सट्रीमली सॉरी सर टू डिस्टर्ब यू, बट सर ये लिंक अब दोबारा ओपन नहीं होगी आपके पास, विद इन 1 मिनट है, 1 मिनट है सर, ये लिंक अब दोबारा ओपन नहीं होगी सर। थैंक यू सर। दोबारा ओपन सौरभ हो जाएगी ना शायद वापस से, अगर अपन सेंड करेंगे तो लिंक दोबारा मीटिंग बनानी पड़ेगी और फिर उसकी लिंक अगेन दोबारा सेंड करनी पड़ेगी। जो अभी सेम लिंक चल रही है वो ओपन नहीं होगी, क्योंकि उसका
मतलब 3 बार ओपन हो गया, हमने इतना ही टाइम पीरियड रखा था इसका। ओके, लेट्स सी। फटाफट लास्ट एडवाइस दे देता हूँ कि जो पेशेंट्स में हफिंग से सिक्रेशंस क्लियर नहीं हो पाते हैं, उन पेशेंट्स में आपको जंप करना पड़ता है कफिंग की तरफ, फिर आप कफिंग कराओ। बट जितना हो सके कफिंग से बचाना है पेशेंट्स को, क्योंकि कफ इस कभी भी अच्छा नहीं होता है। कफ करना मतलब बहुत ज्यादा प्रेशर आना होता है लंग्स में, तो कफिंग इज नेवर राइट थिंग। ओके, कफिंग नहीं कराना है कभी। आप ट्राई करो कि हफिंग से क्लियर हो जाए सिक्रेशंस, बट अगर हफिंग से नहीं हो रहे हैं तो आपको लास्ट ऑप्शन कफिंग कराना पड़ सकती है। तो ये थी आपकी ACBT टेक्निक के ऊपर। आई होप ये टेक्निक सभी को समझ में आ गई हो, और यही सबसे इंपॉर्टेंट टेक्निक थी मेरी आज की, जो मुझे मैक्सिमम लोगों के साथ शेयर करनी थी। तो ठीक है, अगर लिंक जनरेट नहीं हो पाती है तो मैं यही अपने आर्टिकल को समअप करना चाहता हूँ, जिसमें मैंने पोजिशनिंग, रेस्पिरेटरी एक्सरसाइजेस और ACBT टेक्निक के बारे में मैंने बताया है। ये टेक्निक हम लोग एक्यूट फेज में, पोस्ट एक्यूट फेज में यूज कर सकते हैं पेशेंट्स के ऊपर, और इस तरीके से हमारे पेशेंट्स को एक हेल्दी लाइफ जीने में उसकी हेल्प कर सकते हैं। थैंक यू। Right away. Yeah. Can I start? Yes, ma'am. Yeah. Good evening to one and all. I'm honored to offer the vote of thanks on behalf of Team Sanjeevan Physio, and especially Raja sir, Shraddha ma'am, and her mother, Mrs. Seema Shinde. So thanks to all of you. I would like to start with Priyanka ma'am. Thank you, ma'am, for coordinating, for moderating the entire webinar, for being there in between, for any technical assistance as well. We did have 2 other colleagues of ours doing the same. And a special thanks to our experts, that is Saurabh sir, Bandit sir, and Surbhi ma'am. It was truly wonderful to know, to be enlightened by your knowledge about the COVID-19 virus. Truly, there were so many things which we were unaware of, and you have cleared so many doubts of us. And we are grateful to have you all in our team. I would like to thank all our participants, the audience, without which this wouldn't have been a success. So thanks a lot. And as this was our first webinar, we look forward for much more webinars. And I thank, last but not the least, I would like to thank Shraddha ma'am and her mother. It is because of their hard efforts that, right from the beginning, as they have put in their hard efforts in contacting our experts, and they have been associated with Team Sanjeevan Physio. So without them, we couldn't have we couldn't have enjoyed this webinar. Enjoyed in sense, we were so happy to know so many things which we really never knew about. So thank you to all of you. And again, we look forward to meet again on such a webinar and learn something new and something more about coronavirus. We look forward for that. Thank you so much. Thank you so much, ma'am. Thank you so much, ma'am. Thank you so much, ma'am. Priyanka ma'am, Nisha ma'am, Raja sir, Shraddha ma'am, and her mother. Thank you so much. Thank you so much, ma'am. Thank you so much, everyone. Thank you so much, ma'am and sir. God bless all of you It was all. an excellent session. Thank you, sir. Thank you, everyone, for arranging this webinar. And a simple request to Raja sir, please और ऐसे webinars arrange करिए और हमें मौका दीजिए sir. Thank you once again, sir. It will be our pleasure to have more and more series of webinars like this. We'll work on it later on, gradually. Right? If all people, everyone just give the support